administration, sports psychology, management, teaching, and training. She has served in the Indian Army's Intelligence Corps and has worked with IILM Management College. Currently, she is teaching at Kamla Nehru College, Delhi University, and was previously part of the founding team of Haryana's first Sports University of Haryana, Rai, Sonipat. A passionate mentor, Dr. Sunaina is deeply committed to guiding and empowering students, particularly in rural areas. Though through her educational workshops and training programs, she helps underprivileged students build career paths, develop resilience, and cultivate leadership. An accomplished researcher, Dr. Sunaina has presented papers at national and international conferences, with many of her works published in prestigious psychology and management journals. She is also a lifetime member of multiple psychological associations and has authored the book Authentic Leadership and Psychological Capital, a managerial study. She is passionate about bringing change and is also a TEDx speaker, working tirelessly to inspire and empower individuals to achieve their highest potential. I don't know if that does absolute justice to you, ma'am, but that's a lot of information that I could gather. And I think you're a very great person, and we're going to have a lot to learn from you in this session. I pass it on to Bhavya. Thank you so much, Vivan, first. Mhm. Thank you so much, Ivan. Thank you so much, ma'am. Greetings to everyone here. I am Bhavya. I'm the Joint Secretary of the department, and on the behalf of the Student Council, I would like to extend a warm welcome to all of you for joining us today, and we're truly excited to have you here, ma'am. We're grateful for you to take out your precious time and the opportunity to learn from your vast experiences. Thank you so much for being here, ma'am. Truly means a lot to all of us. Thank you so much, Bhavya, and thank you so much, Vivan, and thank you so much, Krishan. He was the one who sent me the invite. और जब बच्चे बुलाते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ, ठीक है? And so when it comes to women, yaar, if you ask me, my superpower is being a woman only. I'm telling you all because it's a feeling. और today so बेटा मैं ज्ञान नहीं दूंगी. आई थिंक योर जनरेशन, आप लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है? सो टुडे आई जस्ट वांट टू शेयर फ्यू ऑफ माय एक्सपीरियंसेस बिकॉज व्हाट आई फील इज बहुत बार हम जो अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीख पाते हैं वो शायद किसी के स्पेसिफिक अगर बताने से नहीं सीखते. आई स्टिल रिमेम्बर माई डेज ना. मेरे डैड ने ना मुझे कभी ये नहीं कहा तुझे ये बनना है, तुझे ये करना है, तुझे ये बनना है. आर यू गेटिंग मी? He just told me the importance of being independent. He just told me, you know, why education is important. और उसके लिए ना रास्ते अपने आप खुलते चले गए. So that is what, you know, he just empowered me. Are you getting me? What I want to tell you all here is, so बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी. So being a woman, I think most of the time the first thing comes is the challenges faced by women. ठीक है? तो सबसे पहली चीज women का नाम आते ही ना दिमाग में ना अगर मैं you know that वो first thing comes ना कहीं, and we all will agree to it. It's, you know, yes, society is changing, but if you ask me, few decades before, even, you know, getting education used to be considered as a privilege for a girl child. Okay, I have seen that time, bacho, because when I look at my nani, when I look at my mother, when I look at myself, मैं कहा यार क्या change हो रहा है ना? Because lots and lots of change being happening in our own society, तो बहुत important है. So today आज मैं सिर्फ इस चीज पे नहीं बात करूंगी. women, boys are also there and they are equally the part of this society. तो मैं दोनों चीजों के ऊपर कंसीडर करना चाहूंगी because ये जो पीछे वाली जनरेशन है, हमने कहीं ना कहीं लड़कियों को एम्पावर करते गए और लड़कों को बीच वालों को सिखाना ही भूल गए कि अगर लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं तो घर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी शेयर्ड बाय द बॉयज ऑल्सो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज मैं दोनों, बिकॉज दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आज मैं उसी चीज पे बात करना चाहूंगी. यू नो, चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी क्या कुछ एक्सपेक्ट करती है, स्टीरियोटाइप्स हमारे साथ कितने ज्यादा अटैच्ड हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ना वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो, बच्चों, ये ना हमेशा वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. यू ऑल एग्री टू इट, है ना? कि मम्मा विल द फर्स्ट वन जो घर में बैलेंस आउट क्रिएट करेगी, ठीक है? जेंडर बाइसेस हर जगह आप जाओगे, और मैंने तो आई सर्व्ड विद फौज, आप सोच के देखिए, इट्स कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड,
ठीक है, कुछ साल पहले तक और ज्यादा थी। यस, अपनी जगह बनाने में इतनी आसानी नहीं हुई, चैलेंजेस होते हैं, फेस करने पड़ते हैं। उन्हीं सब चीजों की मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। सो फर्स्ट हम दिस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। सो आई बिलोंग टू अ फैमिली बच्चों, मैंने अपने दादाजी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं देखा आज तक। वे बैक इन 1980s, फाइन। तो माय मदर वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द विलेज जिसने घूंघट नहीं निकाला था गांव के अंदर, एंड इट वाज कंसीडर्ड अ बिग थिंग। आज भी मतलब ना, उस टाइम में तो सोचो, और ये नहीं है कि आवाजें नहीं उठाई होंगी। तो ये बात मैं आज आप लड़कों को भी समझाना चाहती हूँ। उस टाइम में यस माय मदर वाज बोल्ड, बट व्हाई शी बिकेम बोल्ड? बिकॉज देयर वाज अ समवन टू सपोर्ट हिम। Who was that? My grandfather and my father was there to support us. So whenever people used to question, there was someone in front of her standing and taking on all the questions and supporting her fully, अच्छे से, ठीक है। सो आई बिलोंग टू दैट फैमिली। देन आई वाज बोर्न, माय दादू वाज सो हैप्पी, देन माय सिस्टर वाज बोर्न। और जब मेरी सिस्टर हुई ना, तो गांव के अंदर पता है क्या होता है बच्चों, हरियाणा से, तो जब लड़का होता है ना, तो इधर से गुड़ गुड़ पता है ना आपको, है ना, गुड़ का वो जो बड़े वाला ना, उसको भेली बोलते हैं ना, तो गुड़ की भेली लेके गांव में जाते हैं। तो माय दादू वाज सो हैप्पी, उन्होंने अगेन से गुड़ लिया और वो गांव में पहुंच गए। माय नानी बिकेम सो हैप्पी कि लड़का हुआ है भाई, गुड़ की भेली आ गई है, तो ठीक है ना। तो व्हेन बट बातों बातों में व्हेन शी रियलाइज्ड ओ लड़की हुई है, तो शी वाजंट दैट हैप्पी, ठीक है, उस टाइम की नानी। तो शी वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरी बेटी के दूसरी बेटी हो गई है, दिस एंड दैट। एंड माय दादू को जैसे ये पता चला ना, एंड ही गॉट फ्यूरियस। ही टोल्ड माय नानी, अभी तो 2 क्या, मुझे 7 पोतियों की जरूरत है जो इस देश की सेवा करेंगी। सो ही हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, उस टाइम से इवन इफ माय फादर कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ, सोसाइटी हमारे अंदर वो दी स्टीरियोटाइप्स, वो कहीं ना कहीं बिलीव हमारे अंदर ना, एक साइकोलॉजिकली सिंड्रोम सा, जिसको मैं बोलती हूँ इम्पोस्टर सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, हम लेडीज के अंदर ना इंटरनलाइज्ड बिलीफ आ जाता है कि ओ दे आर नॉट गुड इनफ। सो आई वाज दैट ब्लेस्ड कि मेरे अंदर ये कभी बिलीफ नहीं आया दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, फाइन। सो फ्रॉम देयर ओनली माय दादू वाज अ फ्रीडम फाइटर, फाइन। सो बचपन से ही ना, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, हमने सिर्फ ये सुना, उनकी कहानियां सुनी। तो वो सुन के जब हम बड़े हुए, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से, सुना है ना, पता है बेटा, अपने लिए तो सब कोई जी रहा है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अपने बच्चे पाल रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, अपने परिवार का कर रहे हो, कहते हैं हर कोई कर रहा है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंसान वही अच्छा है जो दूसरों के लिए कुछ करे, जो देश के लिए कुछ करे। और ये बात ना कहीं देखो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों, बट आपके अनकॉन्शियस माइंड का इतना बड़ा पार्ट बन जाती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। उसके बाद मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है। Are you getting me? So alag, and when it comes to serving for the nation, the first thing in India comes is Fauj, Defense Services. Fine, because this is that beautiful organization. बहुत कुछ सिखाती है आपको, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई जॉइंड फौज ऑल्सो। और इस मेरी पूरी जर्नी में माय फादर ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे घर के अंदर ना बच्चों, मुझे कभी नहीं कहा गया तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑलवेज लाइक you have to complete your education first, you have to be independent first, and then we'll talk about anything else. Fine. तो कर में कभी बात नहीं। My mother was just 10th pass when she got married to my dad. मेरी मम्मा ने और मैंने मास्टर्स के पेपर एक साथ दिए, ठीक है। तो व्हेन शी गॉट, तो वो गांव में आई शादी करके, तो माय डैड वाज लाइक कि अच्छा, या तो मित्रों तू गांव में रह ले, गांव में रहना तो वही काम करना पड़ेगा, पानी भी लाना पड़ेगा, जानवरों का भी करना पड़ेगा, खेत में भी जाना पड़ेगा। माय मम्मा वाज वेरी यंग, शी वाज 12 इयर्स यंगर टू माय डैड, शी वाज लाइक अ किड, और माय डैड वाज वेरी मैच्योर इनफ एट दैट टाइम। उस टाइम में शादियां ऐसे ही होती थी कि नौकरी कर रहा है लड़का, अच्छा है, मैच्योर है, तो कर देते हैं, ठीक है। व्हेन माय मदर गॉट मैरिड, तो उसको लगा हाय काम से पीछा छूटेगा, चलो पढ़ाई कर लेते हैं। Though she was not that interested in study, but then she did it. She did her Prabhakar OT, and thankfully she got a job. But still, my dad was after her कि graduation करो, masters करो. When I was doing my masters in 2002, my dad filled the form for my mother also. Fine कि तुम ये करो, because education एक super power है मेरे बच्चों. I'm telling you all. मुझे नहीं लगता कोई अमीर है, मुझे नहीं लगता कोई गरीब है. What
education gives you ना, it gives you a sense of empowerment, because जब आप पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करते हो ना बच्चों, बड़ी एम्पावरिंग है, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती है जिंदगी में, नौकरी करना नहीं सिखाती है। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एजुकेशन सिखाती है, जो मैंने सीखा। आज मैं इतना कुछ क्यों बोल पा रही हूँ, बिकॉज देखो, आई वॉज ब्लेस्ड। अगर आज कोई मुझे सेल्फ मेड बोलता देन आई सोच कि नहीं यार, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट आई वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली जहां पीपल वर देयर टू सपोर्ट मी। बट नाउ एवरीबडी इज नॉट दैट ब्लेस्ड, यू ऑल विल अग्री टू मी, है ना? हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता। सो नाउ आई टेल टू गॉड, आई हैव मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू गिव दैट सपोर्ट सिस्टम टू अदर गर्ल्स who are not getting it. So that is how, this is the time which has come now. I have started giving back to the society. Now I'm reaching to those girls, I'm going back to the village, I'm going back to the roots. I've started a small mission Join Indian Army. I'm going, I'm interacting with the girls जितना मेरे से हो पा रहा है। बच्चों पता है, कई बार चीजें ना हम शुरू नहीं कर पाते हैं ये सोच के कि छोटी हैं बड़ी हैं। मुझे ऐसे लगता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आई थिंक नियत इंसान की सबसे बड़ी चीज है। इवन इफ अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मुझे कृष्ण का मैसेज आया तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं कितने बच्चों से मिलूंगी, शायद 10 हो, शायद 20 हो, शायद 50 हो। मैं कहा अगर उनमें से 20 या 30 में से एक बच्चे को भी मेरी बात समझ में आ गई, इट्स एन इम्पैक्ट एंड इट्स सो फुलफिलिंग। और फुलफिलिंग नहीं होता बच्चों व्हेन पीपल कम्स एंड टेल्स यू कि मैम यू इंस्पायर्स मी, मैम मुझे आप जैसा बनना है। ओ माय गॉड, मैं कह रही हूँ इससे एम्पावरिंग कुछ नहीं है। It makes you feel so good about yourself. So from there it started for me too, बच्चों। ठीक है, just give me 1 minute, मैं ये लगा रही हूँ। I'm just putting on the charger. Yes, fine. तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। सो जब आई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बात एंड एवरीथिंग, यस आई वाज, मैं सोसाइटी की मैंने कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी बच्चों। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, माय डैड वाज माय कोच, सो आवर स्टोरी वाज अ दंगल स्टोरी। ओके, सो दंगल स्टोरी एग्जैक्टली द सेम। मुझे सच में लगता था यार मैं कहाँ पैदा हो गई हूँ। माय डैड वाज सो डैम स्ट्रिक्ट। और जब ये गाना आया ना बच्चों, तो दंगल मूवी का, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ओ आई immediately called up my sister. We were two sisters, same training used to happen and I called her, यार exactly एक एक लिरिक जस्टिफाइड कर रहा है हमारी फीलिंग्स को संध्या, प्लीज लिसन टू दैट। और एक एक वर्ड बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरी दिल की भावनाएं निकल के आई है। और आई वॉच दैट मूवी आफ्टर 1 month बिकॉज आई वॉन्टेड टू वॉच इट विद माई डैड ओनली। ठीक है, तो मेरी लाइफ के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटल, गर्ल्स आर यूज्ड टू बी that graceful, elegant, and so many other things. I was like a tomboy, always playing. मेरी पूरी जिंदगी सरकारी कपड़ों में निकल गई। तो मुझे लाइफ में कभी ब्यूटी का कंसेप्ट भी नहीं था। लेट मी टेल टू ईच वन ऑफ यू, बिकॉज किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि यू आर ब्यूटीफुल और समथिंग एंड दैट। और मैं कहीं ना ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ बच्चों, बिकॉज व्हेन somebody don't tell you, I never get into this, I think वो जो टीनेज वाला टाइम होता है ना, looking after yourself, your hair, your skin and so many things। और ये बड़ी चीजें ना बच्चों बाहर के लिए होती है, ये अभी समझ में नहीं आती है at young age, but now at this age I understand that. Now I'm so thankful to my dad that I was so damn busy. मेरे लिए ब्यूटी का कंसेप्ट था how good I'm playing। मेरे लिए ब्यूटी का कंसेप्ट था कि आज मैंने कितने फ्रंट रोल अच्छे से लगा लिए। मेरे लिए ब्यूटी का कंसेप्ट था कि आज मैंने डाई मारनी सीख ली। मेरे लिए ब्यूटी का डिफरेंट कंसेप्ट। आई वर्कड मोर ऑन माय वैल्यूज, I worked more on my character, which was very important for me. Character means always taking side for what is right. कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जुनूनी होना पड़ता है, जिहादी बनना पड़ता है टाइप्स ना। एवरीबडी विल नॉट एक्सेप्ट इट कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। दैट्स व्हाट दिस वाज मी ऑलवेज। अपने आप को मैं चाहे कहीं भी होता था, बीइंग अ वुमेन, सो आई ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट वाज राइट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एम्पावरिंग बचपन से मेरे अंदर आती चली गई। सो स्टीरियोटाइप्स को मैंने कभी माना नहीं, एंड देयर वाज अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि उनको प्रेशर नहीं, यस
बहुत होते थे यार। आई हैव सीन पीपल टेलिंग माय फादर कि तेरी लड़कियों का ब्याह हो जाएगा इन छोरियों का। आर यू गेटिंग मी? आई बिलोंग टू हरियाणा, क्या शादी हो जाएगी इन लड़कियों की? पीपल यूज टू टेल, ओ सुनैना तो यू नो आप टैन हो जाते हो, एंड इन हरियाणा गोरी इज ओनली सुथरी लड़की, जिसका रंग साफ वो सारे सुथरे, अकॉर्डिंग टू हरियाणा फिगर्स ना। सो आई नेवर यूज्ड टू फिट इन दैट, बट स्टिल बच्चों स्टीरियोटाइप को नहीं पूरा किया, नहीं ट्रेडिशनल रोल्स को, बट वी नीड मोर विमेन लाइक दैट। सो भव्या, साची, झलक, ऑल दोस हु आर लिसनिंग टू मी, मेरी जान, आज के टाइम में ना बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग ओवर पावरिंग, कहीं ना कहीं हम लोग आउटर ब्यूटी, आउटर चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर चीजें जाती जा रही है। आर यू गेटिंग मी? ट्रेंड एक दिन आता है, दूसरे दिन चला जाता है। आप समझ रहे हो? आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ माई डैड कि यू नो बेटा, सीरत पे काम करो, सूरत पे नहीं। सीरत आपके साथ पूरी जिंदगी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी अगर आपने एक बार काम कर लिया। सूरत का क्या है, आज है कल नहीं है। विद एज यू ग्रो ओल्ड, सो मेनी थिंग्स। सो अपना, मैं कहती हूँ अपने आप का, जिसको बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, डोंट गिव इट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, चीजें ट्रेंडिंग आएंगी जाएंगी, नीड नॉट टू वरी। अगर तुम ट्रेंड के साथ चलोगे तो भीड़ में मिक्स हो जाओगे। आर यू गेटिंग मी? है ना? तुम्हें तो ट्रेंड बनाना है मेरी जान। सो यू रियली नीड टू बी डिफरेंट। डिफरेंट विद व्हाट? विद योर वैल्यूज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीजें हैं। और मैंने पता कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस किया, जो मैं यहाँ चलती रही। देन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। ठीक है, तो जब मेरा 12th के बाद हुआ, तो 12th के बाद आई टोल्ड माय डैड, डैड मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी। मेरा इंजीनियरिंग में हो गया था। तो कहते क्या करेगी? मैं कहा मैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगी। मैं कहा इंटेलिजेंट बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने ये सुना था उस टाइम में ना कि जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। मैं कहा मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। डैड कहते जा। Imagine at that time I just thought कि I'm very bold, but now after becoming a mother I think you know bold wasn't me, bold was that person. ठीक है, बट एक और चीज बच्चों, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम योर यंग जनरेशन स्ट्रगल विद दिस कि पेरेंट्स समझते नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो मैं तुम्हें एक थोड़ी सी चीजें बताती हूँ उसको ना समझने की बच्चों। जस्ट ट्राई टू एज अ पेरेंट ऑल्सो, एंड मैं आपकी जगह रख के भी ये बात बताने की कोशिश करूंगी। पेरेंट क्यों नहीं समझते हैं? फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहली चीज उन्होंने वो सब देखा नहीं है जो आप देख रहे हो। गॉट इट? सेकेंड थिंग, प्यार ये बड़ी ऐसी चीज है यार, ये ना ओवर प्रोटेक्टिव चाह के भी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, यू ऑल विल अग्री टू इट, फाइन। मैंने कितनी साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, पेरेंटिंग के बारे में पढ़ा है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू माय ओन सन ना, माय मदर इंस्टिंक्ट ओवरपावर्स एवरीथिंग। क्या करूं? बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल, इट्स अ फीलिंग। ये वो अपने आप को बहुत रैशनली समझाते भी होंगे, बट उनको जब कृष्ण कुछ गलत करता हुआ दिख रहा है, उनसे रहा ही नहीं जाएगा। उन्हें लगेगा कि मैं वंशिका को बचा लूं। उन्हें लग रहा है अपने एक्सपीरियंस से। देखो आप, हम देखो बच्चों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू परसीव दिस वर्ल्ड विद योर ओन एक्सपीरियंसेस। आई होप यू ऑल विल एग्री टू इट। आप में से डॉग्स किस किस को पसंद है? आप में से कुछ लोग होंगे जिनको डॉग्स नहीं पसंद है ना? अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें रीजन क्या है? जिनको डॉग्स पसंद है, वन रीजन कैन बी बचपन से उन्होंने डॉग्स को देखा है, ऑलवेज हैड अ गुड इंटरेक्शन विद दैट, घर में रहा है, प्यार रहा है। जिनको नहीं पसंद है, जैसे मेरे भाई को बचपन में काटा था, तो आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? काटा था, मेरी मम्मा ने कभी घर पे रखने नहीं दिया, घर पे नहीं रखने दिया तो एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, बहुत सारी चीजें एसोसिएट, सो एवरीथिंग। तो इसमें सही या गलत क्या है बच्चों? आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। I am seeing people fighting on Instagram over that. People can't accept each other. If somebody doesn't like it, they don't like it. It's as simple as that, because they must not be having any pleasant experience with that. It's just a matter of understanding. If somebody likes it because of their own understanding, let them like. So this world is like that. आप किसी चीज को कैसे अगली बार जज करोगे? विद योर ओन एक्सपीरियंसेस ना मेरे बच्चों। तो आपके पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, उन्होंने जितना सीखा है वो उसका बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए।
Please try to understand it. Fine. Whatever they have learned through their own experiences, they are trying their best for you. Fine. उससे बड़ी चीज है action speaks louder than words. Will you agree? तो वो एक्शंस क्या देखते हैं पूरा दिन अपने बच्चे के? नेटफ्लिक्सिंग पे बिंजिंग चल रही है, हाथ में सारा दिन मोबाइल चल रहा है, 1 घंटे की पढ़ाई में 2 बार बाथरूम ब्रेक लिया जा रहा है, 2 बार पानी का ब्रेक लिया जा रहा है, 2 बार मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया जा रहा है। अब बेचारे पेरेंट्स के सामने तुम जाके कहते हो कि नहीं, आई वांट टू डू दिस। भाई एक्शंस कहाँ है? तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है ना, मेरे बच्चों, मुंह से मत बोलो, बोलो ही मत। देखो, जैसे मैं ये पेरेंट्स को भी सेम चीजें कहती हूँ, ठीक है ना? दो मुझे मुश्किल होता है ये बात समझना कि बच्चों को भी मुंह से मत बोलो, ठीक है ना? बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर यू ऑल्सो, यू नो, शो देम विद योर एक्शंस। देखना अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। When they will see you have already cleared something and this, she is so passionate, they are in the top, they will say, okay, go, कर लो कोशिश। एट द एंड वो कह ही दे, हम उससे पहले ही भूमिका बांधने लग जाते हैं। नहीं नहीं मैं करूंगा, यू आर नॉट गिविंग। कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म्स। हम अपने बहाने ढूंढ रहे हैं उन चीज को ना करने की। यू ऑल नो दैट नोबडी नोज यू बेटर देन यू। 2.5 लाख बच्चे यहाँ बाजीराव में बैठे हैं यार, कमाल कर रहे हो। आपको क्या लगता है उन सब में वो है कि उन सब आईएएस बनना है? नहीं, कुछ डर के भाग रहे हैं, कुछ पीयर प्रेशर में भाग रहे हैं, कुछ किसी और चीज में है। सो फर्स्ट थिंग आई रियली वांट टू टेल टू ईच वन ऑफ यू, नोबडी नोज यू बेटर देन यू। प्लीज 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 ट्राई टू डू दैट, ठीक है? तो लाइफ के अंदर इफ यू वांट टू डू वेल, डू। मैं सच सच कह रही हूं, कभी किसी की एक्सपेक्टेशंस हम पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और कभी आप किसी की क्रिटिसिज्म से बचने के लिए सपने पूरे नहीं कर पाओगे। कर पाओगे तो सिर्फ अपने पैशन से, कर पाओगे अपनी लगन से, अपने हार्डवर्क से, अपनी स्किल से, नथिंग एल्स। एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट ए थिंग, यू आर गोइंग टू फाइंड द वेज एंड मीन्स, ठीक है? तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कम जज करना स्टार्ट करना, ठीक है? अग्रीड? ठीक है यार, तुम ज्यादा स्मार्ट जनरेशन हो, तुम ज्यादा समझ सकते हो। उनकी तो इतनी उम्र है, बिकॉज एक आदत जितने लंबे टाइम के लिए पक जाए तो लेट होता है ना चेंज करना। यंग एज में चीजें चेंज जल्दी हो सकती है। तो यू गाइज आर यंग, so I expect more from you all. Fine, please try to do that. Fine. So coming to me, that's how I joined Forge and my dad was very वो। तो मैं कर करके पायलट तो मैं नहीं बनी, और जब मैं पायलट नहीं बनी मुझे सच में लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ठीक है? बिकॉज हमें हर को ऐसा लगता है, बट वी डोंट नो कि एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। कई बार हमें खुद को नहीं पता होता हम कितने अच्छे चीज के लिए बने हैं। अगर उस टाइम मेरा फ्लाइंग में हो जाता, शायद मैं फ्लाइंग कितनी 5 साल कर पाती, 10 साल। परमानेंट कमीशन वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। और शायद मेरी जो अंदर स्किल है बीइंग अ टीचर, वो मुझे पता ही नहीं चलती। आर यू गेटिंग मी? ये मेरी ओपन विंडो कब हुई? जब मेरी फ्लाइंग की विंडो बंद हुई। Then I started एकदम ऐसे ही, just for the time pass, I started teaching students pocket money के लिए, and I realized how much I love teaching. मैं कहा हाय राम, कितना मजा आ रहा है, ठीक है? I was so that's how, and I joined Forge also for education core बच्चों। but वही चीजें as per your planning नहीं जाती है। Throughout I was playing all 3 years. I was there in IP college, in the Prastha college, ठीक है, for women. I got admission over there. All 3 years I played inter college, inter university, all India inter university, played many nationals, best all rounder student of the college, sports women of the college. तो लाइफ बड़ी अच्छी थी, कर रही थी। फिर मास्टर्स करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए, फौज में भी आए। जब फौज में भी गए तो आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1 व्हेन आई जॉइंड द फौज। वहां पे भी जाने के बाद व्हेन यू केम इन माय एंट्री, व्हेन यू केम बैक फ्रॉम देयर, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है? उसके बाद देन वर्क लाइफ बैलेंस की अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, ठीक है? सो देन द सेकंड थिंग केम, आई गॉट मैरिड and married to again a Fauji, arranged marriage, and again blessed, wonderful husband in army only, ठीक है? तो सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद अच्छा ही चल रहा था, आई बिकेम मदर एंड यू नो ऑल ऑफ द सडन अगेन मेरे बच्चों, नहीं समझ में आएगा 20 साल की उम्र में, मेरे से ज्यादा करियर ओरिएंटेड कोई नहीं था। सोचो मेरे एक्सपीरियंसेस किस तरीके से थे, है ना? सो यू डोंट नो व्हाट टुमारो इज गोइंग टू हैपन। सो व्हाट वी नीड इज अडेप्टेबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन I became mother, all of the sudden मेरे बच्चों, all my that na career oriented girl, that was overpowered by all my mother instinct.
So first day, I still remember I was wearing a uniform. My husband was also wearing a uniform. तो मेरी maternity leave जब खत्म होती है, I was going back to my office, and I was not Sunana over there. And when you are wearing a uniform, बच्चों, it's a 24/7 job. Because the pride, फौज में यही है, the pride you take in wearing that uniform, it's not easy. And being a mummy also is a 24/7 job. And then married to infantry officer, we both were due for our field posting. मैं कहा यार चीजें बड़ी मुश्किल होने वाली हैं. आर यू गेटिंग मी? हर रोज आप यूनिफॉर्म पहन के किसी को नहीं कह सकते हो ना, सर मेरे घर पे छोटा बच्चा है. Nobody has told me. So I thought कि चलो मेरे पास स्टिल ऑप्शन है. और उस टाइम में देन यू सी यू वे थिंग्स. ठीक है, लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैसे आती है मेरे बच्चों, अपने एक्सपीरियंस. आई नो सो मेनी बच्चास ना डिसीजन ही नहीं लेते. बच्चों लाइफ में ना डिसीजन कभी सही या गलत नहीं होते. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है ना, डिसीजन बस लेने के लिए होते हैं. ठीक है, सही टाइम पे ले लो. सही होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं सही होगा तो ठीक कर लेंगे. यार हमारा डिसीजन है ना, कर लेंगे ठीक. थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. उस रिग्रेट में पूरी जिंदगी जीने से अच्छा काश ले लिया होता. इट्स बेटर टू वर्क हार्ड एंड जस्ट करेक्ट इट. दिस इज व्हाट आई डिड. मैं कहा चलो भाई फौज छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं. ठीक है, बट आप फौज छोड़ सकते हो. ये फौज इतनी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको कभी नहीं छोड़ती है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. मैंने छोड़ दिया. ठीक है, बट जब मैंने छोड़ा, जिसके लिए छोड़ा, सिर्फ 2 months हमारी ऐसी लाइफ चली. ठीक है, सो प्रदीप वाज पोस्टेड इन पालमपुर. मैं निर्भय वाज 1.5 years old, माय सन. तो मैं उसको लेके पहुंच जाती हूँ पालमपुर में, और एकदम फिल्मी जिंदगी बच्चों. आई एम टेलिंग यू, मैं आराम से बहुत होम मेकर बन के इतनी खुश थी. आई कांट टेल यू. अपना घर सजाया, कुशंस लगाए, लैंप्स लगाए. ठीक है, प्रदीप सुबह जाता था पीटी के लिए, वापस आता था. आई यूज्ड टू वेट फॉर हिम. हम दोनों चाय पीते थे. छोटी सी बालकनी थी, उसके सामने धौलाधर रेंज दिखती थी. ठीक है, जो टिपिकल रोमांटिक मूवीज में देखते हो. आवर लाइफ वाज लाइक दैट. एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि यार यहाँ आके तो जिंदगी ना 2 साल तो बढ़ी गई है. पालमपुर जगह इतनी अच्छी है. आर यू गेटिंग मी? बट लाइफ नेवर गोज एज पर आवर प्लान. आफ्टर 2 months ओनली माय हस्बैंड आफ्टर अ लंच मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा सरकाते हैं. मैं कहा प्रदीप व्हाट्स दैट? मैं कहा I'll not accept it if it is a UN mission call. He started laughing, I started crying. Imagine, आपने जिसके लिए फौज छोड़ दी, करियर छोड़ दिया, फैमिली लाइफ, बच्चा लाइफ, then he was moving to. And again I'm telling you, if you ask me, मेरे बच्चों, the most struggling phase of my time was that. Pradeep went for his UN mission and Sunana, no job. Captain Sunana was Mrs. Pradeep. Fine. And with 1.5-year-old child, I was so damn dependent. Jo always a independent girl, I was so damn dependent. What next? Again, I was blank. मैं कहा, what next? I don't know. I can't stay with my parents. मैं तो 12वीं के बाद कभी नहीं रही यार अपने माँ बाप के साथ. पूछ के decisions लेना so difficult. Are you getting me? A person who has stayed so independently always. Then I again took a decision. I started my life again from zero, मेरे बच्चों. I started from, again went to Gurgaon. Pradeep was there with me. Again, my family support. My dad stayed with me. कर तुझे जो करना है. I started from scratch. मैंने वहां इंटरव्यूज देने शुरू करे. जो छोटी नौकरी थी चाहे बड़ी नौकरी थी, everything into teaching, keeping Nirbhay into the view. So I was lucky. मैंने ज्वाइन करने से पहले नेट क्वालिफाई कर लिया था. So first opportunity I got in Keshav Mahavidyalaya in 2011. That was the first college who gave me the opportunity. 3 महीने was so damn bad. मेरे बच्चों, my confidence was in my knees. मुझे कोई पूछता था, मुझे ऐसा लगता था मैं लाइफ में कुछ नहीं दोबारा कर पाऊंगी. I won't be able to. That's what I'm telling you. Being a woman is not easy. I didn't stay with my in-laws, so they also felt bad. A girl who was always liked by everyone. Now जब क्वेश्चन करना शुरू करते हो, I was into that phase. सब गलती मेरी है. Are you getting me? I was trying to make people happy, which I was not able to do it. At that time, I was supposed to be a support system for my parents,
but I was seeking support from them at that time, which was very challenging for me. My career was starting from zero. How to start it again, I wasn't aware. Then I took step by step. I joined Keshav. Keshav was 45 kilometer away from my home. I was staying in sector 57 गुड़गांव. आना जाना मेरा 5 बजे दिन शुरू होता था मेरे बच्चों. मैं हारी नहीं बस. That's the only thing which I want to tell you all. My day used to start at 5. उसके बाद ना मैंने 2008 में MBA करी थी रजिस्टर, जिसकी रजिस्ट्रेशन मई 2012 में खत्म होने वाली थी. आप समझ रहे हो? I thought अगर मैं इसको पूरा कर लूंगी तो गुड़गांव में IILM कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरे बगल में थी. मैं कहा आई जॉइन दिस, बट उसके लिए मुझे 36 पेपर्स क्लियर करने थे 5 मंथ्स के अंदर. सो एंड मैंने कहा करने तो पड़ेंगे. अभी मैं कह रही हूं बच्चों, चीजें ना करने के हमारे पास 100 एक्सक्यूजेस हो सकते हैं और करने के लिए सिर्फ एक वजह काफी होती है. और उस टाइम मेरे पास एक वजह क्या थी कि मेरा घर पास हो जाएगा. आई वुड बी एबल टू गिव मोर टाइम टू निर्भय. आर यू गेटिंग मी? मैंने वो बीड़ा भी उठा लिया. सोचो जरा, ये होश मुझे कब आता है? नवंबर में. ठीक है, मई में मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली थी. एंड आई स्टार्टेड, आई प्लान्ड फॉर एवरी डैम थिंग. मैंने एक एक बुक उठाई. मैंने कहा मेरे को दूर का देखना ही नहीं, ये बुक मेरे को इस हफ्ते में खत्म करनी है, इसकी दोनों असाइनमेंट. आई स्टार्टेड लाइक दिस. आई स्टॉप ड्राइविंग माई कार. आई स्टार्टेड टेकिंग मेट्रो. मैं मेट्रो में साड़ी पहन के जाती थी और कोने में जब सीट नहीं मिलती थी कहीं भी बैठ जाती थी. बिकॉज माई टारगेट यूज टू बी हुड्डा सिटी सेंटर से कश्मीरी गेट तक मुझे एक चैप्टर पूरा रीड करना है और वापसी में एक चैप्टर मुझे पूरा रीड करना है. दैट यूज टू बी माई टारगेट. ठीक है. और उसके बाद बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ाने, जो आप 10 साल से साइकोलॉजी छोड़ चुके हो, वो भी पढ़ना पड़ता था. डैड बेटा सब रखना. निर्भय का सुबह डैड का खाना बना के निर्भय का पूरा रेडी करके वो स्कूल जाता था. मैं वापस आती थी, डैड लेके आते थे. सोचिए एवरीथिंग. आके उसको नहलाना धुलाना सुलाना. व्हेन निर्भय यूज्ड टू स्लीप एट 9:30, अगेन आई यूज्ड टू स्टडी. चाहे 2 बजते थे चाहे 3 बजते थे, अगेन आई यूज्ड टू गेट अप एट 5:30. ठीक है. तो ये जिंदगी मेरी 5 to 6 months थी मेरे बच्चों. एंड आई कुड डू इट. आई कुड कंप्लीट ऑल माई 36 पेपर विद अ डिस्टिंक्शन, बिकॉज करना था. तो मैं तुम लोगों को कह रही हूं, व्हेन लाइफ डोंट गो एज पर योर प्लान, वी हैव ऑल द पावर. घबराओ मत बस. आर यू गेटिंग मी? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी इनहिबिशन से, अगर मैं उस टाइम ये कह दे ये तो नहीं होगी, चल छोड़ यार, अगर मैं वो छोड़ यार कर देती, दिमाग के अंदर एक, इट इज नॉट कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होती. बीइंग अ फौजी वाइफ, लाइफ इज कंफर्टेबल. आई एम नॉट टेलिंग यू. आर यू गेटिंग मी? बट identity of being a woman and an independent woman, it makes you different, it makes you fearless. That is what I want to tell to all of you, even the boys bachcho. When you overpower your own expectations, are you getting me? It is so, because every tough time teaches you so much. That was the time I could complete it. मैं सुबह 5 से मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी के साथ बना क्या हुआ है. सुबह से लेके दोपहर शाम ऐसे मूव कर रही थी लाइफ ना. एंड व्हेन यू डू इट, उसके बाद लाइफ में दूसरा डिसीजन लेते हुए कभी डर नहीं लगता. अच्छा वो वाला टाइम देख लिया ना, आगे भी कर ही लेंगे. आर यू गेटिंग मी? यू गेट दैट मच पावर फ्रॉम योर डिफिकल्ट टाइम्स. सो इफ इट इज राइट नाउ, नीड नॉट टू वरी. एक तो जब भी मुश्किल टाइम आता है ना, उसको ये मत सोचा करो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना. नो. अगर दूर की सीढ़ी नजर नहीं आ रही, इट्स ओके. अगला कदम नजर आ रहा है, अगला कदम है बस ये असाइनमेंट खत्म करनी है. जस्ट कंप्लीट इट. दैट्स इट. और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी ना, मार्क माय वर्ड्स, इतनी एनर्जी मिल जाएगी दिल के अंदर कि अगली सुबह फिर उठने का मन करेगा. बिकॉज जितने इनकम्प्लीट टास्क है वो एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं मेरे बच्चों. और जितने कंप्लीट टास्क है, इट एनर्जाइजेस यू. सो द ओनली थिंग विच आई हैव लर्न्ड, आई डिड इट फ्रॉम देयर. फाइन. सोचो मैंने वो किया, आई कंप्लीटेड इमीडिएटली. मई में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ केशव महाविद्यालय के साथ. जून में मेरा रिजल्ट आता है, जुलाई में मैं देती हूँ, एंड आई ज्वाइंड IILM. ठीक है. जब नियत अच्छी हो, मेहनत की हुई हो, सब रास्ते खुलते हैं आपके लिए. घबराने की जरूरत नहीं है. आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंसेस मेरे बच्चों. जिंदगी में नियत भी बहुत बड़ी चीज है. ठीक है. एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर सम पर्पस, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट इट.
वो मेरे 2 साल बड़े ही आसानी से निकलते हैं, ठीक है, निकल गए, कर गए, मेहनत कर गए, वो करें। उसके बाद भी फौज व्हाट हैज टॉट मी इज we are never going to get the best opportunities in our life. Are you getting me, मेरे बच्चों? It's not always going to be the best, but whatever little we have, we can try to make the best of it. वो तो मुश्किल नहीं है ना। लोग बड़ा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, उसकी इच्छे में पता नहीं जो है उसको सजा लो ना, उसको जन्नत बना लो। किसने मना किया है? चाहे मेरे पास 2 कमरे का घर है, मैं उसको अपना बेस्ट बना सकती हूँ, वो तो मेरे हाथ में है ना। या मैं उस चीज की वेट करती रहूं कब मुझे बड़ा घर मिलेगा, स्टाइल का मिलेगा। नहीं, इट्स ओके। कितनों के लिए सोच के देखो बच्चों, हमें ऐसे लगता है कि वो हमारी जिंदगी भी बहुत लोगों के लिए ड्रीम लाइफ है। Everybody is not that blessed like us also. Please try to understand that. That is what I want to tell to each one of you. हम सब लोग भाग रहे हैं, किस चीज के पीछे भी डोंट नो। ठीक है, आई एम श्योर अर्निंग मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट आप सोचो, मेरा जितना मुश्किल वाला टाइम था ना बच्चों, उसमें एट द एंड सपोर्ट सिस्टम क्या था? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार हम ना पैसा कमाने में, नौकरी करने में इतने बिजी हो जाते हैं, जो बेसिक बीइंग ह्यूमन है ना, हम रिश्ते कमाना भूल जाते हैं, विच इज इक्वली मोर इंपॉर्टेंट। पैसे चाहे जिंदगी में थोड़े कम भी कमाए हो, अगर रिश्ता एक भी अच्छा कमा लिया ना, इट गिव्स यू सो मच ऑफ सेफ स्पेस। ओह यस, ठीक है, बिकॉज वार्म हग्स ऑल ऑफ अस नीड। आप में से कोई है जिसको अच्छा ना लगता हो? जोर की जफ्फी। कई बार ऐसे लगता है वो एवरीथिंग इज सॉर्टेड विद दैट जस्ट वन हग। और सिर्फ लेने की मत सोचो मेरी जान, देने की भी सोचो। Be that safe space for someone. Be that support system for someone. And that is what I'm doing for last few years. ठीक है, नहीं कम से कम दे तो सकती हो ना। शायद सॉल्यूशन तुम्हारी हर प्रॉब्लम का नहीं होगा, बट सुन तो सकती हो ना। That is what I can do it. So just start thinking about that. And that's how, or फौज ने मुझे सिखाया कि सीखते रहो, because when you are learning ना, today also if I have come, I wanted to learn something. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। सो आफ्टर दिस 2015 में, बिकॉज मैं एमबीए कर पाई ना, मैंने अपनी पीएचडी भी रजिस्टर कर दी। मैं कहा ये भी कर ही लूंगी, एंड आई कुड डू इट विद इन 3 years with Nirbhay and with job and with this moving transfer. I could do it. Then I could work on my book also. Now also I have some plans which I want to do it. For last 3-4 years, when this COVID happened, I started with my Insta page, Captain Dr. Sunana Singh. I just started like this. मतलब because I was not able to reach to the students in the rural areas. कोविड आ गया था, पहले तो मैं स्कूलों में जा रही थी, फिर मैंने वो बंद करके मैं कहा चलो इस पे, और मुझे इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत मिली वहां पे, वो भी बड़ा अच्छा चलता रहा। नाउ अब मुझे ऐसे लगता है, व्हेन आई गाइड स्टूडेंट, व्हेन आई मीट देम, देखो मुझे सब कुछ नहीं आता है, बट वट एवर लिटिल आई नो, उतना तो शेयर किया ही जा सकता है। Fine. So I started with this mission, Join Indian Army, a small mission where I think बच्चों को फौज का पता ही नहीं है, and it's such a beautiful organization to work for. So जो कैंट से दूर है, मैं उन बच्चों के पास रूरल एरिया में, नाउ माय ओनली टारगेट इज कि मैं अपने गांव से अगर 1-2 बच्चा निकाल पाई, एंड टू बिकम एन ऑफिसर, टू बिकम अ लीडर। ठीक है, गांव के बच्चों को, बिकॉज उनके पास इतना टैलेंट है, टैलेंट से इंपॉर्टेंट उनके अंदर वो आग है कि वी वांट टू अचीव समथिंग, बट दे लैक इज जस्ट द गाइडेंस एंड द अपॉर्चुनिटीज। सो I've just created a platform, a very small one, and just trying to help them out. For me, that is, and for me, helping them out to find their means, that is the meaning of true empowerment. Are you getting me, mera bachcho? When you empower others, when you give them platform, which is, I think, more important. So this is what I'm doing. So for you all also, जिंदगी में भी ना, when it comes to बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, सबसे important, if I want to tell you all, is the growth mindset. ठीक है बच्चों, इसको रखो, mindset is the most important thing. Everything starts from here. ठीक है, आप सोच के देखो, पहला दिन आपको एक अच्छा थॉट आता है, any good thought. Shachi got the good thought today. When she will get up now, उस सोच के साथ ही ना, she will feel good.
आपको फीलिंग गुड का मतलब पता है ना, दिल के अंदर गुदगुदी सी होती है, यू फील गुड, है ना। आज गाने गाते हुए चल रहे हो, आपकी चाल भी डिफरेंट होती है। कॉलेज में यू विल से हाई टू एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज फाइन। उस दिन आप क्लासेस भी अटेंड करते हो, आपकी इवनिंग वॉक्स भी होती है, आप एक्सरसाइज भी करते हो, योर डे वाज सो गुड बिकॉज यू डोंट रियलाइज इट, इट स्टार्टेड विद समथिंग गुड हियर। द मोमेंट वन थॉट कम्स लाइक झलक, ये तो मेरे से नहीं होगा, और इतने अच्छे बच्चे हैं, कंपटीशन कितना ज्यादा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा, आई नो सो मेनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। आर यू गेटिंग मी? व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, द मोमेंट दिस डाउट कम्स, दिल अपने आप बैठ जाता है। और जिस दिन दिल बैठता है उस दिन आप बेड से नहीं उठ पाते हो। नेटफ्लिक्स पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको प्रोग्राम कौन सा देखना है, वो भी थक जाता है रिकमेंडेशन दिखा दिखा के। डिसीजन मेकिंग बिकम सो डैम पुअर। आप सोचिए, इट हैपेंस विद दैट वन थॉट। सो व्हाट वी नीड टू लर्न मेरे बच्चों इज हाउ टू, आई एम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इट हैपेंस विद ऑल द एथलीट्स एवरी डे। So what needs I tell them is, rephrase all your negative thoughts with the positive one, and it's a training. You all need to start, whenever a negative thought comes, replace it with the positive one. Immediate result नहीं मिलेंगे। आप सोचिए, मैथ्स को सीखने के लिए आपको कितने साल लगे? 2 + 2 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, सो मेनी इयर्स यू हैव स्पेंड। दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू टेक टाइम मेरे बच्चों। जितना जल्दी सीख लोगे, you know, stop doubting yourself, everything has to come. I first time में अगर मैं डाउट में रह जाती और वो छोड़ देती, today I would not be the same Sunana. Are you getting me? ठीक है, डिसीजन लिया, गलत निकला था, मुझे लग रहा था हाय मैंने फौज क्यों छोड़ी, मैं उसी में रह लेती, है ना। बट मैंने उसको ठीक किया। ठीक करने के लिए क्या करनी होती है? मेहनत। मेहनत किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? थोड़ा एक्स्ट्रा जागना। जाग लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? हमारी जिंदगी है, हमें बनानी है, एंड लेट्स मेक इट द वे वी वांट टू मेक इट। Nobody else is going to decide about our life. We are going to decide about our life. It's our life मेरे बच्चों, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। Get hold of your life. It's very, very important. So this mindset is the most important thing. Learn from your failures, बच्चों, और फेलियर से डरो मत। और फेलियर्स जब होंगे तकलीफ होगी। Who says कि तकलीफ नहीं होगी? होगी, रोना आएगा, चिल्लाना आएगा। Do it. Don't paint yourself with that fake smile. No, no, ma'am, everything is fine. I'll handle. No. चीजें जब अंदर रहती हैं बवाल मचाती हैं यार। Let it out. Let the world knows that you're not feeling good today. It's okay. It's okay. You should know how to express your emotions. Find your ways and means, बच्चों। बिकॉज जब तक इमोशनल उसको टैकल नहीं करोगे फेल होने के बाद, तब तक नेक्स्ट स्टेज पे कुछ सीख नहीं पाओगे अपने फेलियर से। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ट्रॉमास को दबाते चले जाते हैं, रिप्रेस करते चले जाते हैं, और जो बाद में बवाल मचाते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। है रोना आ रहा है, रो लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एंड बॉयज, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट, इनको प्लीज निकाल दो अपनी जिंदगी से। यस, आई एम गोइंग टू डू इट। यस, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। दीज शुड बी योर continuous, phrases coming out from your mind. Fine. So daily morning when you get out of your house, stand in front of the mirror. I do it, I'm telling you. मैं डेली निकलती हूँ, डेली सोचती हूँ, स्माइल करती हूँ, कहती हूँ टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ना भी हो, अपना बेस्ट जरूर कोशिश करूंगी करने की। इज दैट क्लियर टू एवरी? प्लीज डू दैट बच्चों, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एम्पावरमेंट।
Self-empowerment is the true empowerment. If you are self-empowered, your confidence is going to bring everything in your life. Please try to understand that, because confidence is not, believing in your ki I'm perfect. Nobody is perfect in this world. Are you getting me? Neither I am perfect nor you are perfect. कोई perfect नहीं है. Confidence is knowing your own weaknesses and accepting them in front of everyone. This is what I am. Fine. On the moment you will accept it, फिर आप लोगों से ना छुपाते नहीं हो. और जब आप छुपाते नहीं हो, तो confidence अपने आप आता है. कब जब आप लोगों से ना चीजों को छुपाते हो, अपने आप आपकी एनर्जी छुपाने में लग जाती है और कॉन्फिडेंस अपने आप कमजोर हो जाता है. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू, हैव दैट माइंडसेट, यार नोबडी नोज एवरीथिंग. एंड द मोमेंट यू गो देयर एंड समबडी आस्क्स यू, जस्ट टेल देम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ. देखना, कोई बुरी चीज नहीं है, बट आप क्या करते हो, उसको गोल मोल करने की कोशिश करोगे एज इफ, और उसमें आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हिल जाता है. ठीक है, प्लीज ट्राई टू लर्न. और सबसे इंपॉर्टेंट, सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल. बहुत जरूरी है मेरे बच्चों. कुछ लोग होते हैं ऐसे एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं हमारी, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग, नेगेटिव थिंग, नेगेटिव थिंग. यार कुछ तो अच्छा हो रहा होगा दुनिया में. नेटफ्लिक्स और अगर मैं अमेजॉन प्राइम के 2 सीरियल देख लूं ना, मुझे ऐसा लगता है आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी. बट नहीं, गुड पीपल ऑल्सो डू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. That's why we are, मतलब चल रहे हैं, वरना तो आज मार चुके होते हैं हर कोई एक दूसरे को. आप सोचो, दुनिया चल रही है ना बच्चों, इतने टाइम से चलती आ रही है, तो अच्छे लोग भी हैं. हमें नहीं मिल रहे हैं, तो we have more the reason to become that good human being. If somebody looks at us, at least give an our example. Okay, Shachi, she is such a wonderful girl यार. और मैं सच कह रही हूं, बुरा बनना ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, प्लीज ट्राई वेरी बेसिक थिंग्स. ठीक है, बहुत जरूरी है. एंड वी ऑल नीड इट वेरी बैडली. नेगेटिविटी इज ऑलरेडी देयर. उससे होना क्या है, अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और घुसे जाओ, और नेगेटिव, और बात और करो. व्हाट यू गिव वी गेट बैक. मुझे नहीं लगता, देखो पॉजिटिविटी से हर चीज सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता है. आई अंडरस्टैंड, बट एनर्जी तो मिलती है हैंडल करने की, थोड़ी बहुत लड़ने की. एटलीस्ट आई एम गोइंग टू फाइट विद दिस. ठीक है, सो गिव योरसेल्फ विद एनर्जी. ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल थिंग. बच्चों लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी, व्हाट्सएवर बीइंग अ वुमेन आल्सो, एनीथिंग पीपल आस्क मी हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव, मैं पता सिंपल एक चीज है बच्चों, भगवान ने जो दे दिया बहुत है. आई थिंक ग्रैटिट्यूड से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं. अगर आप इसको प्रैक्टिस करने डेली लाइफ में सीख जाओगे ना, मैं कह रही हूं, ग्रैटिट्यूड और एंजाइटी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. These are two opposite feeling. If you're in a, that framework of gratitude, तो अपने आप से आपकी दूसरी चीजें will be taken care for. और अब भी अगर आप में से कोई है जिसको लगता है कि not feeling blessed for, तो मेरे साथ चलना. एम्स एक रात चलते हैं, इमरजेंसी वार्ड एम्स का सफदरजंग का चक्कर काट के आएंगे, और तुम आज लोगों की जब जिंदगी देखोगे तो मेरे साथ गाने गाते हुए आओगे. दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया. एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ. मेरे बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Tomorrow our life is not going to be perfect, neither my life is perfect, but भगवान ने जितनी दे रखी है बहुत अच्छी है. Yes, challenges are going to be there, that's what makes the life beautiful. Challenges होंगे, लड़ेंगे. कब तक लड़ेंगे? जब तक आखिरी सांस है भाई. That is what Fauj has taught me. ठीक है, क्या होगा, एक रिजल्ट बुरा आएगा, दूसरा दूंगी, तीसरा दूंगी, चौथा दूंगी. कब तक दूंगी? जब तक लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाता. लास्ट अटेम्प्ट भी हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर कुछ और करूंगी अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ तो करूंगी. Is that clear to everyone? I am not going to give the control of my life in someone else's hand. It's my life and I am going to decide what I am going to do with that. Is that clear? That is the meaning of empowerment for me. You call it women empowerment and I call it self-empowerment. If I am self-empowered, because everything internalized, बच्चों मैं दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकती. No one can make me happy. It's all inside me. ठीक है, please try to understand your life. That's it. हमारी जिंदगी है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और हमसे अच्छी कोई चला भी नहीं सकता है. We'll try. हाँ, challenges आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे. It's okay. Mindset is what matters. कितने पैरालंपियंस है, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है बच्चों, कितने लोग तो सोचो पैरालंपिक्स खेलते हैं और कितने लोग नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंस के वहीं रह जाते हैं. What circumstances तो सेम ही थे ना. What mattered? Matters is
mindset. So have that champion kind of mindset always. ठीक है, और have those self believing. जब भी आपको लगता है कि दुनिया आपको बिल्कुल कर रही है, तब और मौका है अपने आप को यकीन दिलवाने का, ये मैं जरूर करके दिखाऊंगी. Is that clear? और मैं कह रही हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट से बड़ी कोई एडिक्शन नहीं है. एक बार रात को 12-1 बजे तक मेहनत करके देखो, अगले दिन और मजा आने लग जाएगा, और मजा आने लग जाएगा. इट्स लाइक कि जिम में जाते हो ना, 10 दिन बाद थोड़े कपड़े खुले दिखने लगते हैं, तो और मजा आने लगता है. सेम गोज टू एवरीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, शुरू में चैलेंजिंग होता है, ठीक है, बिकॉज तकलीफ होती है, और हर अच्छी चीज को पाने में तकलीफ तो होगी. ठीक है, और उन तकलीफों से जब निकलोगे, स्टार बन के निकलोगे. ठीक है, चलिए, मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ कितनी देर में इन सब टॉपिक्स के बारे में, बट आई थिंक आज के लिए इतना ही है. एनी क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज डू आस्क. मेरे बच्चे, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We have a doubt session to follow, like a question and answer round. But before we do so, with folded hands, I would really like to thank you. आप आए, और मतलब I have been following you on Instagram from a long time, and I really wanted कि आप आओ और एक webinar बाकी मेरे classmates and juniors, seniors के साथ लो. And I knew it would be really helpful, and I hope it was helpful to everyone. And as we do in our tradition, can we use that heart emoji to thank you, ma'am, before we follow with the question and answer round? मेरे लिए, मेरी तरफ से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सच अ लवली. झलक, साची, विवान, भव्या, वंशिका, स्पेशली कृष्ण, जो दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे इतना प्यारे मेरे को दिखा रहे हो, तो मेरा और बोलने का मन कर रहा था. थैंक यू सो मच. And a genuine request to everyone, ki please do not leave the meet until and unless we're not done with the doubt session. Yeah. So Yeah. Jhalak and Vivan, take over. You're good to go. अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट, Yes, hi. एक सेकंड. Yes, ma'am. मैं अपना ना यहाँ पे मैसेज में, चैट कहाँ है, ये रहा. आई एम जस्ट राइटिंग माय 7710353370. This is my WhatsApp number. Please do WhatsApp me the feedback of the session, all of you, whosoever. 7710353370. Please do that. Your feedbacks are very important to me. ठीक है, चलिए. हाँ जी, झलक बताओ बेटा. So thank you, ma'am, for your insightful words. It feels enchanting to listen to you. We just want to keep listening to you. But now we will have an open discussion, and whoever wants to ask any questions may kindly raise their hands, and we will go one by one. पुनीता, yes बेटा. Yes, ma'am. Hello, ma'am. So my question is, like during you're working in Indian military service, what were the various like pressing health challenges, mental health challenges that you faced, and how did psychology contributed in addressing them? ओके, सो बच्चों, व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, फौज के अंदर ना, मैं चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. वो मेंटल हेल्थ तक कम पहुंच पाते हैं, बिकॉज फिजिकल हेल्थ इतनी बहुत तगड़ी होती है उस टाइम में ना, सबसे पहली चीज. ठीक है, एंड फौज ट्रेनिंग इज वेरी गुड. So when they train you during that academy time, they make you mentally very strong. So this organization grooms you for taking all the challenges. तो जब हमें वो challenges लेने आते हैं ना बच्चों, तो वो mental health तक नहीं पहुंच पाते. Let me tell you, yes, challenges हैं. देखो, being a woman, सबसे बड़ा challenge जो मुझे लगता है फौज के अंदर दिखता है, because numbers are very small. ठीक है, जब नंबर स्मॉल होते हैं ना बच्चों, तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन मेल ऑफिसर इज नॉट डूइंग समथिंग, आर यू गेटिंग मी, तो बोला जाता है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट. वहीं पे अगर देर इज वन विमेन ऑफिसर हु इज नॉट डूइंग अ टास्क, आपने अभी देखा होगा, एक रिसेंट बड़ा आर्टिकल भी आया था, है ना. ठीक है, विमेन ऑफिसर्स कमांडिंग के ऊपर, तब क्या हो जाता है, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी, तो जेंडर पे बात आ जाती है, विच इज नॉट राइट, जो बुरी लगती है. आर यू गेटिंग मी? वहां भी बोला जाना चाहिए कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, बट नंबर कम होने के बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था. ठीक है, सो मोर द प्रेशर होता था, बिकॉज 2006 के अंदर भी परमानेंट कमीशन वाज नॉट देयर, बट अपने आप को प्रूव करने के लिए. बट आई वाज बीइंग वेरी ब्लेस्ड कि
I met the finest of the officers and even the troops, the kind of respect I have earned from them now. Oh हो. मुझे आज भी ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है फौज में सबसे ब्यूटी चीज ये है कि अगर आप नीचे वालों को देखो ना अपने, वो आपको इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं कि हर चीज वर्थ लगती है. Yes, challenging was at that time when Nirbhay was born, and for every women officer it is challenging. But if you have a family support system, which wasn't there with me at that time, are you getting me? मेरे पास नहीं था. My mother was working at that time, my dad was working at that time. तो मुझे उस टाइम में मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो आई कुड नॉट डू इट. ठीक है, बट देयर आर मेनी. और एक चीज और मैं आप सब लोगों को समझाना चाहती हूँ बच्चों, स्पेशली गर्ल्स. बेटा लाइफ में ना हमें हर चीज नहीं मिलती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो भी एक साथ तो कभी नहीं मिलती है. ठीक है, वी लुक एट पीपल डूइंग प्रोफेशनली वेरी वेल. अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को जरूर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा. ठीक है, अगर हम लोगों की तरफ देखेंगे वो आर डूइंग वेरी वेल इन देयर पर्सनल लाइफ, तो आप उनसे पूछोगे तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर किया होगा. आप समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें जो कहना चाह रही हूँ इज दैट देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. आप समझ रहे हो? शायद जब तक मैं मां नहीं बनी थी तब तक मेरे को वो फीलिंग ही नहीं थी. आर यू गेटिंग मी? प्रॉब्लम आप अपने आप से पूछिए. ठीक है, आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इफ यू थिंक योर करियर टेक्स द प्रायोरिटी, गो अहेड विद दैट. बच्चे सबके पल जाते हैं. सपोर्ट, देन डोंट बी गिल्टी ऑफ द अदर साइड. आर यू गेटिंग मी? हाँ, और अगर आपको पर्सनल लाइफ से वो मिल रहा है, प्लीज गो अहेड विद दैट. छोटा मोटा प्रोफेशन तो मैं भी अपना कॉम्प्रोमाइज कर ही रही हूँ, मैनेज कर ही रही हूँ. सॉरी, एवरीबडी एवरीथिंग. बट दोनों जगह बेस्ट बेस्ट होने में आप गिल्ट में और मतलब हर चीज के अंदर मेंटल हेल्थ पे तब इश्यूज आने लग जाते हैं. आर यू गेटिंग मी? इन माय लाइफ पुनीता, माय प्रायोरिटीज वर ऑलवेज वेरी क्लियर. व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आल्सो माय प्रायोरिटी वाज क्लियर कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है. व्हेन आई वाज wearing a uniform, I had to leave. My priority was very clear कि निर्भय was my priority. Are you getting me? जब आपकी प्रायोरिटी आपको क्लियर होती है ना, फिर आप दूसरी चीज को रिग्रेट ज्यादा नहीं करते हो. ठीक है, और जब ये चीजें क्लियर होती है तो मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक रहती है. मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी होती है जब हमें अपनी खुद की प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती है और हमें सब कुछ चाहिए होता है बटोरना एक साथ एक समय पे, विच इज वेरी डिफिकल्ट. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, thank you so much for answering my question. Ma'am, before we move on to the next question, I would like to request everyone in the meeting to switch on their cameras if they can. The department will like to take a group photo of this Google Meet. कर लो बच्चों, एक अच्छी सी स्माइल कर लेंगे सबके साथ. I want to see you all. If anyone have joined from the laptop, can they take a assist? If anyone have joined from Thank the you, laptop, can they Srishti. raise their hand? Can you raise your hand whoever have joined with the laptop so that we can proceed with the screenshot? Srishti, okay. There's nobody have joined from a laptop. मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, मैं करूंगी. Okay, ma'am. So can you take an assist and send it to me? बट मैं तब लूंगी Thank you, जब तुम thank you so स्माइल much. करोगे, अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट. Yes, ठीक है, ma'am. सो द बिग स्माइल आई वांट फ्रॉम एवरीवन. 1 2 3 स्माइल. Yes, very good. More people joining. Rishi Raj joined. Very good. Sagar, very good. More people. Let's see. Guys, please open up your camera, everyone. आ रहे हैं. प्रिशा, थैंक यू. थैंक यू श्रेयांक. चलो, मैंने बहुत सारी ले लिया. अक्षत, सर पकड़ के क्यों बैठा बेटा? इतना बोर किया मैंने. चलिए, गुड. आई हैव क्लिक्ड मेनी. और Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. I think Srishti had a doubt. Yeah, Srishti, ask So, beta. yeah. Yes, this is more of an informal question, I guess, ma'am. But since you have come back as a teaching staff now after studying in Delhi University, what differences have you changed over the years, over the course of the years? Over with the students or with what? किस बारे में change in respect of students or what you want to ask? Overall, ma'am, whatever you have Srishti, when it comes observed. to the student, यार तुम लोग बहुत, यार मैं तुम्हारी उम्र में इतना नहीं सोच पाती थी. I'm telling you, attending these webinars, then working with some NGOs, working for some social work. When I was of your age, मुझे दो ही चीज आती थी, खेलना और पढ़ना. ठीक है, तो this the first thing I really want to appreciate to each one of you. You guys are very focused, also want what you want to achieve in your life. When it comes to you guys have more clarity. Is that clear?
a group of students. Then comes the second, which I only feel is emotions थोड़े कम हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो वन वे कम्युनिकेशन में हम घुस गए हैं, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, गेमिंग, एआई ओवर पावरिंग एवरीथिंग, तो उस वजह से बच्चों आप लोग अपने इमोशंस को ठीक से प्रोसेस नहीं कर रहे हो, और ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी पावर है इमोशंस। मुझे वही कहीं ना कहीं चेंज नजर आता है, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑफ योर एज ना बच्चों, जब मैं रूम में जाती थी ना स्मृति, ठीक है ना, और अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, इमीडिएटली मेरी रूममेट को पता चल जाता था, और वो मुझे पोक करती रहती थी, कब तक, जब तक मैं उसको बता नहीं देती थी, सना क्या हुआ बताना, सना क्या हुआ बताना। आज के टाइम में हमारे बगल से कोई निकल जाता है और हम ये रियलाइज भी नहीं होता दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड। Are you getting me? It's very important. आज के टाइम में when I go to the college, I'm trying my best, ठीक है, I'll not deny the fact कि तुम्हारी गलती है बच्चों, ठीक है, शायद से तो अब more awareness की जरूरत है। So this is my role as a teacher or as a parent to raise a more emotionally strong generation, which is very important. Emotionally strong does not mean कि आप रो नहीं सकते, आप मतलब क्या है कि you understand your emotions and the people of emotions around you. Impatience कहाँ से आ रही है? We are not ready to accept people, which is why जो मुझे लग रहा है, और in recent time WhatsApp taking over social media, हम इतने ज्यादा impatient हो गए, डाइनिंग टेबल पे people have started fighting about politics. Why we are not accepting? Acceptance is very much required. तो मुझे ये चेंज नजर आ रहा है, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगती है ज्यादा जरूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करने की, बच्चों को इमोशन समझाने की। बच्चों चाहे एआई कितना ओवर पावर कर जाए, कैन एआई फील? बताओ मुझे, नहीं ना। और ह्यूमन बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फीलिंग। प्यार होता किससे? जो तुम्हें समझता है, उसके लिए सोचो, सारी अच्छी फीलिंग्स एकदम आ जाती है। इट इज सो पावरफुल, ठीक है। सो बीइंग ह्यूमंस में जो सबसे बड़ी पावर है वो इमोशंस की है बच्चों। सो वो कहीं ना कहीं मुझे आजकल कम होते दिख रहे हैं। यू डोंट नो हाउ टू, अगर आप खुश हो तो आपको ये दिखाना नहीं आता आप खुश हो, आप दुखी हो तो आपको ये दिखाना नहीं आता आप दुखी हो। आर यू गेटिंग मी? चेहरे से सब पता चलता है। when I go एनर्जी मुझे कम लगती है ना, गो एंड आई से गुड मॉर्निंग, 2-3 बजे, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, आज ही पता नहीं सारी दुनिया का, हिंदुस्तान का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पे ही है, और आज तुम्हें सब कुछ हैंडल करना है। तो बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड मेरी जान, ठीक है। योर फिजिकल एनर्जी गिव्स अ साइकोलॉजिकल बूस्ट to your mind, your psychological energy gives a boost to your physical movement also. बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो जब चलते भी हो तो स्मार्टली चला करो यार। तुम्हारी उम्र में तो मैं 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ती थी, ठीक है। तो वो मुझे लगता है आजकल बच्चे रेलिंग पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, थोड़ी सी देर में थक जाते हैं। तो थोड़ा काम करो यार, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आई हैव बिग होप्स फ्रॉम यू ऑल, प्लीज, ठीक है। तो उस पर थोड़ा काम करना शुरू करो, और थोड़ा मुस्कुराया ज्यादा करो, बहुत जरूरत है चलते फिरते। और जिन लोगों के पास नहीं है वो मुस्कुराहट प्लीज अपनी दे दो, ठीक है। तो कल से प्लीज इतनी कोशिश करना कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू कॉलेजेस गिविंग ऑल द वाइब्स। ओहो, इनको हो क्या गया है? कहते जी हम वाइब्स लेके आए हैं आज हम, ठीक है, हिंदू कॉलेज की वाइब्स हम ठीक करेंगे। सो टेक इट एज अ चैलेंज, फाइन। चलिए, सो इतना ही देख रही हूँ, बाकी बहुत स्मार्ट हो यार तुम लोग। आई एम टेलिंग यू, एट योर एज मेरे पास इतना फोकस, इतना विजन नहीं था। यू गाइज हैव मच मच बिग विजन, बहुत अच्छा विजन है बहुत बच्चों से। व्हेन आई इंटरेक्ट विद यंग गर्ल्स, इतनी अच्छी बातें करती हैं यार, बहुत अच्छा लगता है, एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग। इवन बॉयज, विवान, डोंट फील बैड। चलिए, what else? Who else? Anybody else? Bhavya, I think Bhavya is the last person. Bhavya? Yes, Bhavya? Yes. Yeah, hello, ma'am. Your energy is really contagious, I must say. And Thank you. I would want to know, like, in general, जैसे आपने भी बात करी, so अभी like हम लोगों के लिए there's information overload in what we do.
as in schedules also कि college में NP के बाद कितनी classes हैं, then we have to do seminars, webinars, societies, department work, etc., etc. So like if there are some small habits which you suggest जिससे कि we can stay more grounded in our schedules and in a sense कि हमें ज़्यादा self aware feel हो throughout the day, we can stay energized. So any small habit which you would recommend जो हम कर सकते हो? सबसे पहली चीज बच्चों, स्टार्ट जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क माय वर्ड, इट इज सो empowering. I can't tell you, because what happens, life में challenges आते, and journaling does not means Bhavya that you have to write your daily schedule कि सुबह मैं इतने बजे उठी, 6 बजे गई, फिर मैंने बाथरूम किया, फिर मैं बाहर गई, ब्रेकफास्ट किया, और फिर हम कॉलेज गए अटेंड. नो, दिस इज डज नॉट मीन जर्नलिंग. जर्नलिंग मीन्स, देखिए, हमारा पूरा दिन जाता है. इवन इफ यू आर एबल टू राइट 3 to 4 days in a, मतलब 3 to 4 times in a week, it's more than enough Bhavya. ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, you are at the end of the day, just give 5 minutes to yourself. I don't think, most of the time ना दिमाग भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, करे जा रहे हैं, सेम गलतियां बार बार करे जा रहे हैं, because we are not reflecting it back. एक ही चीज को हम बार बार करे जा रहे हैं. सो आप मार्क माय वर्ड्स, आप रात को बैठ के एक बार सोने से पहले एक बार लिख लो. क्या उसमें 50 गलतियां हमारी खुद, क्योंकि जब चीजें हो जाती हैं वो हो जाती हैं. जब तुम लिखते हो ना भव्या, चीजें ना अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाती हैं. गॉट इट? एंड व्हेन थिंग्स कम्स टू कॉन्शियस, चीजें सुलझ जाती हैं भव्या. तो एक बार जब आपने वो लिख दिया, एंड टुमारो द सेम थिंग आर गोइंग टू बी हैपन टू यू, यू विल बी मोर माइंडफुल इन हैंडलिंग दैट सिचुएशन भव्या. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी, जब हम ये करते रहते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस में रहती है, और हम वही सेम चीजें बार बार करते रहते हैं, एंड इट बिकम्स आवर हैबिट. तो हैबिट चेंज कैसे होगी? जब थिंग्स एक्सेप्टेंस आएगी, हमारे कॉन्शियस लेवल में आएगी, दिस इज व्हाट वी हैव डन रॉन्ग लास्ट टाइम. आर यू गेटिंग मी? हमारी जिंदगी हमें ही सुलझानी है. Nobody else is going to come for us. Is that clear? So journaling बहुत बड़ी हैबिट है बच्चों. If you are able to cultivate it, you will see it. Even exams होते हैं भव्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यू ऑल मस्ट बी अपीयरिंग फॉर इट. हर बार गलती होगी, कुछ ना कुछ नहीं हुआ, तो जब जर्नलिंग करोगे तो बैठ के लिखोगे व्हाट वेंट रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम आई नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया. यहाँ पे ये बहुत जरूरी है. ठीक है, कई बार बहुत अच्छा चीज होती है, तो आपको पता है कि ये चीज अच्छी हो रही है, तो इसको मुझे बार बार रिपीट करना है. जब बुरी चीज हो रही है, यू विल बी मोर कॉन्शियस कि इसको मुझे अवॉइड करना है. I want to avoid such kind of people. I don't want to get into it again and again. Are you getting me? Because every experience teaches you something. अच्छा हो रहा है तो हमें उसको रिपीट करना है, बुरा हो रहा है तो हमें इसको अवॉइड करना है. सो जर्नलिंग बहुत ज्यादा होती है. एंड सेकेंड थिंग बच्चा भव्या, मेक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. बहुत जरूरी है. दोस्तों से बड़ी पावर कहीं नहीं है. Don't think that your time is being wasted. No, it is not. This investment आपको पता नहीं जिंदगी में आपके सबसे लो टाइम में आपको काम आएगी वो इन्वेस्टमेंट. सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स, बीट एनी. और भव्या सुनो, और तुम यंग हो मेरे बच्चों, जब ये इन्वेस्टमेंट करोगे ना, हर कोई एकदम अच्छा नहीं मिलेगा भव्या शुरू में. आर यू गेटिंग मी बच्चा? व्हेन यू विल बी गेटिंग, फॉर एग्जांपल, झलक अच्छी, झलक ने आपको, झलक बुरा मत मानना मेरी जान, ठीक है, फॉर एग्जांपल झलक से आप को लगा शी चीटेड यू और समथिंग लाइक दैट, शी वाज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड, समझ आ गई, और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लीव देयर एंड देन. बट उसके बाद भव्या हम बच्चे क्या करते हैं, एंड इवन वी ऑल्सो एट दिस एज ऑल्सो, जब हम दूसरा रिश्ता बनाने जाते हैं ना, वो आधे अधूरे मन से बनाते हैं. आर यू गेटिंग मी? आप जो पिछली चोट खाई हुई है उसको ऐसे लगता है, ओ माय गॉड, इट्स नॉट गुड टू ट्रस्ट एनी अदर पर्सन. नहीं मेरी जान, उस दूसरे बंदे को क्यों शक से देख रहे हो भाई? ट्रस्ट से खूबसूरत तो कोई चीज है ही नहीं. और बिना ट्रस्ट के जब तुम शुरुआत करोगे तो कैसे करोगे? आधी नियत से तो तुम शुरुआत कर रहे हो. कोई बात नहीं भव्या, दूसरा बंदा भी गलत मिलेगा, इट्स ओके. तीसरा ओके, चौथा, बट चौथा शायद साची तेरी जिंदगी में ऐसी हो जिसके लिए वो तुम 10 धोखे भूल जाओगे. It's worth. It's worth. And human relationships are like that only. If somebody is coming to your life, आप किससे एनर्जी मैच करती है? जिनसे आपकी सोच मैच करती है. Are you getting me भव्या? It's very important. Till the time सोच मैच करती जा रही है, सब बच्चे, जब कई बार लोग ड्रेन करने लग जाते हैं एनर्जी, leave them there and then. No need to even give explanation. ठीक है? Work, and I'm sure there will be. और ऐसी बात नहीं है यार. कौन कहता है अच्छे लोग नहीं है? एक बार खुद बन के तो देखो. और जिनको नहीं मिल रहे, प्लीज रिफ्लेक्ट करो थोड़ा सा मेरी जान.
प्लीज, देयर आर यार, मैं नहीं मान सकती। मेरी तो जिंदगी दोस्तों पे चल रही है यार। जब ऐसा टाइम था ना, जब मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, थैंक्स टू दोज पीपल, दे ब्रॉट ऑल माय कॉन्फिडेंस बैक इन मी। दे ऑलवेज टोल्ड मी, ओ माय गॉड सुनैना दीदी, आप तो हमारी रोल मॉडल हो, आप कैसे ऐसे कर सकती हो। एंड समटाइम्स यू नीड बहुत बार हम अपना विश्वास खोते हैं, तो हमें दोस्त चाहिए होते हैं जो हमारा विश्वास हम पे खुद पे वापस लेके, फैमिली चाहिए होती है। और फैमिली ये नहीं है जो आपकी तरह हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। फीलिंग है बच्चों, फील जिसके साथ सेफ हो रहा है वो सब कुछ सेफ है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ रही भव्या। दैट्स रिलेशनशिप, इन्वेस्ट इन दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बहुत जरूरी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये सोचो। ठीक है, चलिए। Thank you, ma'am. And like relating from this, कि जब आप जब कॉलेज में थे, इन फर्स्ट में थे या कहीं भी, तो आपकी फेवरेट कॉलेज मेमोरी मतलब क्या है, फ्रेंड्स के साथ या कैसी भी, एक जब आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी जब आप ओह माय गॉड, मेरी दिल्ली शुरू में के 1 साल तो भव्या इतनी चैलेंजिंग थी, आई कांट टेल यू। मुझे लग रहा था मैं कैसे भागूं। आई बिलोंग टू हरियाणा, ठीक है, स्मॉल जगह से दिल्ली में आ गए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो अंग्रेजी का सीधा वर्ड बोलना नहीं आता था, और वहां सारे बच्चे डीपीएस आर के पुरम, डीपीएस मथुरा रोड। ओह माय गॉड, मैं जो सेल्फ डाउट में धंस गई भव्या, मुझे तो ऐसे लगा मैं तो कुछ भी कर ही नहीं सकती। मैं एक शब्द नहीं बोलती थी, मैं कोने में बैठी रहती थी। मुझे ऐसे लगता था मैम ने अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया और मेरे से जवाब दिया नहीं जाएगा। इट वॉज सो डैम चैलेंजिंग फॉर 1 ईयर। उसके बाद भव्या क्या हुआ कि मैंने खेलना शुरू कर दिया। जब मैंने खेलना शुरू कर दिया, सो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में रिप्रेजेंट करी, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। और हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन उस टाइम एनुअल सिस्टम था, तो बहुत मार्क्स नहीं आते थे। टॉपर के वो 68%, इन फर्स्ट ईयर 68, 69, एंड आई गॉट अराउंड 62%। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, बीइंग फ्रॉम स्पोर्ट, जो सारा साल में 4-4 नेशनल कैंप्स लगाती थी। ठीक है, जब आई ना तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपने आप को समझाया, बैठ के रिफ्लेक्ट किया। मैं क्या, ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके भी इतने नंबर आए हैं। मैं कहा मैं तो इनसे बेटर हूँ, सिर्फ अंग्रेजी तो नहीं बोल रही हूँ ना। वहां से भव्या आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक। फिर मैंने पढ़ना खेलना, तो मतलब मैंने अपनी वैल्यूज लैंग्वेज से अटैच नहीं करी, उसको हटा के, जो अंग्रेजी इतनी बड़ी चीज है, और हमारा जमाना तो बिल्कुल वही था, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ठीक है ना। सो आई बिलोंग टू दैट वन, जब वो इंग्लिश का प्रेशर पूरा आना शुरू हुआ था नया नया, ठीक है, तो हम उससे हैं। तो बट इट टुक मी, बट व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम द थर्ड ईयर, बच्चा आई एम टेलिंग यू, द बेस्ट टिल द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मेरे डैड ने मुझे जिस विश्वास के साथ भेजा था, थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, तो हमारी एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, सो दे इन्वाइटेड मी। सो वहां पे सॉरी आई वॉज अवॉर्डेड विद बेस्ट all-rounder sports women and Ashwini Kumar trophy, and my principal invited my dad for that. और देखो वो एक होती है, but few feelings stays with you forever. So that was the feeling that day बच्चा। जब वो अवार्ड मेरा अनाउंस हुआ ना, पूरा कॉलेज 10 मिनट कर रहा था, सुनैना सुनैना सुनैना। वो मुझे आज भी गूज बम्स दिलाते हैं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, हाय लोग मुझे कितना प्यार करते हैं ना। और जब लोग प्यार करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर माय डैड लुकिंग एट माय मदर एज इफ नो ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड। उनकी आंख में हल्के से आंसू, कहते देख मैंने कहा था ना, बिकॉज माय मम्मा वाज लाइक इसको चंडीगढ़ भेज दे, कहाँ दिल्ली भेज रहा है, इसकी सारी दोस्त चंडीगढ़ जा रही हैं, क्या करेगी अकेली दिल्ली जाके ना। बट माय डैड रियली फेल्ट प्राउड ऑफ मी दैट डे ना, कि देखा मेरा ठीक डिसीजन था कि मैंने इसको दिल्ली भेजा। सो दैट डे इज स्टिल देयर विद मी। और मैं सच कह रही हूँ, दिस कॉलेज ग्रूम्ड मी लाइक एनीथिंग भव्या। आई एम टेलिंग यू, वो जितने मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ थे उन लड़कियों ने मुझे नहीं दिए थे, वो मेरी खुद के कॉम्प्लेक्सेस थे जिनसे मैं बाहर निकली। एंड दोज गर्ल्स वर सच अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। उन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया। मेरी पूरी जिंदगी सरकारी कपड़ों में निकल गई, कॉलेज की स्वेटशर्ट और वो शॉर्ट्स पहन के जो हमें मिलती थी आईपी कॉलेज की ना। जब इंटर कॉलेज खेलने जाते हो, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाते हो, तो सरकारी कपड़े मिलते हैं आपको ना। सो आई वाज इन दैट ओनली, बट स्टिल पीपल यूज्ड टू लव मी फॉर हु आई एम। बट द बेस्ट थिंग वाज आई नेवर ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ भव्या। मैंने अपने रूट्स नहीं भूले। आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट. I feel proud of my parents. Without that exposure also, they could raise me like that. Are you getting me? बच्चों जिनके भाई वो तो privilege है ना, तो I feel super proud of my parents.
आई फील सुपर प्राउड ऑफ माई रूट्स। गांव से निकल के भी अगर हम अपनी चीज को वो कर सकते हैं, मुझे दिल्ली की चकाचौंध ने कभी वो नहीं किया कि मुझे इन जैसा बनना है। I never tried to become like that. I stayed what I was. फिर भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ की, कॉन्फिडेंस मेरा कहाँ से आया? मेरे स्पोर्ट्स से ही आया। जब मैं इंटर कॉलेज का मुझे ब्लेजर मिला, कॉलेज कलर मिला, आई फेल्ट सो हैप्पी एंड प्राउड। सो जब यही चीजें हैं जो आपको ना, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन वैल्यूज, कैरेक्टर, योर स्ट्रेंथ्स, जो शायद कोई चीज ले नहीं सकता है आपसे, तो यही मेरा कॉलेज का आई थिंक बेस्ट था। एंड थैंक्स टू आईपी कॉलेज, बिकॉज जब पास आउट हुई तो गेट कीपर से लेके अंदर मेस इंचार्ज से लेके, कोई आप कुक से पूछ के, प्रिंसिपल से पूछ के, क्लर्क से पूछ के, एवरीबडी यूज्ड टू नो हु सुरैना वाज। बिकॉज मैं सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। एसटीडी वाले बूथ वाला भैया भी ना, जब मैं दोबारा आती थी वो पैसे भी नहीं लेता था। नहीं 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 सुनैना दीदी आप रहने दो, मैं नहीं 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 ले लो। So that was all, and I think all these things only helped me to clear my SSB also. ठीक है, because फौज में यही Thank सब, you so much. yeah. Thank you. चलिए, so that's it. I hope. Ma'am, if we have 5 minutes, then we can take. There are a few people who have raised their hands. So Yeah, we yeah, can please, take their sure, questions. sure, 5, 10, 15, Okay. तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है मेरे पास। Ashi, go ahead. Ashi. Yeah, Ashi. Yes, okay, good evening, ma'am. First of all, I am just in love of your aura. Hi. I mean, अगर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर तो ये तो लूप पे देखना है अब ये सेशन. I can't appreciate you more. तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्लीशेड सा है, but then it's just that what does personal success mean to you? It's very subjective. मैं बता रही हूँ सब for me. एक बार, you just mute yourself. हाँ, आवाज ना इको हो रही थी मेरी ना, ठीक है, इसलिए आई जस्ट, फॉर मी सक्सेस, आई हैव ऑल द पावर ऑफ डूइंग व्हाट आई लव डूइंग। आई एम फीलिंग माई सेल्फ सक्सेसफुल नाउ। आर यू गेटिंग मी? मैं जो करना चाहती हूं मैं वो करती हूं, दैट्स इट। फॉर मी इज नॉट having some power. For me it's not about fame. For me it's not about money. I'm not earning much of the money, ठीक है। For me I'm able to make impact in someone else's life, और मैं तुम जैसे बच्चों की आंखों में वो देख पाती हूँ, and ये मुझे सच में अच्छा फील कराते हैं। because for me I think when people love you for what you love doing, इससे ज्यादा सक्सेस कहाँ मिल सकती है यार, है ना। तो आज सुनो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, I don't have to look at my watch, तो ये सक्सेस है मेरे लिए, ठीक है। I think we have a last question from Vanshika. Vanshika, go ahead. यस वंशिका। नमस्ते मैम। सबसे पहले थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, बट आई जस्ट लव यू। मतलब आपकी स्टोरी वाज सो डिफरेंट। ओके, कमिंग टू माय क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन इज कि आपने बोला हमारी जनरेशन के पास विजन है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, वी आर मोर स्मार्टर। तो या आई एग्री टू इट, बट आपकी जनरेशन के पास जो मैं देख पा रही हूँ, मेरी मदर वाली जनरेशन, उनके पास एक चीज थी डिटर्मिनेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्सेंट्रेशन। वो एक दृढ़ निश्चय जो कर लिया तो उसको पूरा करना है, इवन इस एज में भी, जिस एज में आप हो, आपका जो एनर्जी लेवल है, ओ माय गॉड। पर वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं लैक करती है, वो शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाना। तो कुछ टिप्स, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, कि अपने आप को आपके जितना डिटरमाइन कैसे रखें। हाँ, तो वंशिका, फर्स्ट थिंग बच्चों, अगर हमारे समय में भी मोबाइल फोन आ गया होता ना, तो हम भी शायद इतने डिटरमिन्ड नहीं होते, ठीक है। तो उसका भी मैं तुम्हें थोड़ा कम ब्लेम करती हूँ। हमारा जमाना था बच्चों जब हम सिर्फ DD1 देखते थे। DD2 अगर हमें देखना होता था तो हम छत पे जाके हमें एंटीना हिलाना पड़ता था, और मैं अपनी बहन से पूछती थी, संध्या आया होता, तो पेशेंस अपने आप आ जाती थी। रंगोली, बीच में ऐड आएगी, आराम से बैठ के देखोगे। अब तुम्हारी जनरेशन एक साथ 4 प्रोग्राम देखती है। इतना कुछ मिल गया है तो डिसीजन मेकिंग अपने आप पुअर हो जाएगी। इतने कपड़े हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कौन सा पहनो, क्योंकि जब पहनने लगोगे तो तुम्हें पता नहीं, व्हेन चॉइसेस आर मोर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। हमारे पास 4 ही होते थे, मेरे पास तो 4 भी नहीं होते थे। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सरकारी कपड़ों में हमारा टाइम निकल गया। आर यू गेटिंग मी? अब वंशिका, मैं ये कहती हूँ बच्चों कि ये है, तुम्हें ये रियलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। What is happening is your brain is continuously running, ठीक है। तो अब
तुम्हारी जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों इसको दिन में 5 से 10 मिनट आराम देने की। अब वो तुम किस तरीके से देख सकते हो, देखो अगर पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट बच्चों। मेरी मतलब आई एम ऑल्सो अ पार्ट, मेरे पेरेंट्स इवन स्टिल ओके, आर यू गेटिंग मी? मेरे भी अगर मैं पेरेंट्स देखूंगी उनको और कम जरूरत है, बल्कि सारी मेडिटेशन तो वही कर रहे हैं। तो जरूरत हमें बहुत ज्यादा है वंशिका, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। कोई भी चीज जो बार बार चलती रहेगी, इवन इन स्पोर्ट्स, ऑल टेनिस प्लेयर हैव टेनिस एल्बो। क्यों? एक ही हाथ यूज हो रहा है, एक ही हाथ यूज हो रहा है, मसल्स जवाब दे जाती हैं। तो इस दिमाग की मसल्स जवाब दे जाती है वंशिका मेरे बच्चों। तो इसको अब तुम कब समझोगे? किसी अलार्म के बाद समझोगे, या भाई कोई एक अलार्म आता है ना, डॉक्टर साहब आके जब चिट्ठी दे देते हैं भाई इतने दिन बचे हैं, तो फिर सारी फिजिकल हेल्थ आपके पास सारी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाती है। ऐसा नहीं है वंशिका, समय नहीं है, समय सबके पास सब चीज का है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। समय तो सोच के देखो है कि नहीं, अगर आपके दोस्त आपकी प्रायोरिटी है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, 5-5 घंटे फोनों पे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सोच के मतलब टाइम तो सबके पास है, टाइम की बात नहीं है, समय है आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। अगर आप सब लोग वेट कर रहे हो कि वो ऐसी कंडीशन आ जाए, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए, मेंटल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाए, आपके फिजिकल सिम्टम्स नजर आने लग जाए आपको, जब आपके तभी आप जाके अलार्म जागता है ना बच्चों का। तो preventions are always better than cure. It's not your fault, it's there in the environment. We can't blame the environment now. We need to learn the ways and means. So when it comes to the ways and means, sometimes we need to slow down, we need to be more mindful. Mindful means we need to know how to keep our mind on present. Most of the problems are happening because of overthinking. I hope you all will agree to it. Overthinking, when you do about negative things only. I hope you all will agree. नेगेटिविटी अबाउट रिग्रेट ऑफ द पास्ट, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैं वो कर लेती, हाय काश ऐसा हो जाता। और एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, हाय ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, लाइफ कैसे चलेगी, उसमें मेरी जान खत्म। क्या हो रहा है? प्रेजेंट। अग्रीड? अब करना क्या है? दिमाग को लेके आना है कहां वंशिका? प्रेजेंट में मेरे बच्चों। अब व्हाट आर द वेज एंड मीन्स? अब विवान के लिए डिफरेंट होगा, वंशिका के लिए डिफरेंट होगा, सुनैना के लिए डिफरेंट होगा। व्हाट इज अ वे ऑफ माई मीन व्हेन आई डू ओवरथिंकिंग? मेरा क्या है मैं बताऊं? आई स्टार्ट क्लीनिंग माई हाउस टू कीप माई माइंड ऑन प्रेजेंस, बिकॉज कुछ ना कुछ चाहिए मेरे बच्चों। आई लव क्लीनिंग। मैं पूरी अलमारियां सॉर्ट आउट कर दूंगी, सारी टैप्स चमका दूंगी, किचन ऑर्गेनाइज कर दूंगी, पूरा फ्रिज साफ हो जाएगा, सारा सामान बाहर आ जाएगा, शाम तक मेरा घर ऐसे चमकता हुआ मुझे नजर आएगा। एंड इट इज सो रिलीविंग फॉर मी, बिकॉज सफाई का बेस्ट पार्ट होता है इमीडिएट रिजल्ट नजर आता है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। वी ऑल हैव टू सी व्हाट आर दैट हमारे लिए वो क्या चीज है जिससे वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट लेफ्ट एंड राइट वंशिका। इट कैन बी बेकिंग फॉर समवन, इट कैन बी सिंगिंग फॉर समवन, इट कैन बी पेंटिंग फॉर समवन, इट कैन बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड फॉर समवन, इट कैन बी गोइंग आउट फॉर अ कॉफी विद योर फ्रेंड विद समवन, इट कैन बी टेकिंग अ hot bath, it can be anything Vanshika. It can be a good night's sleep. It might be a run for you, it might be playing a match of badminton with someone. We all are different, but find your own coping strategies Vanshika, but because immediately you will come to know that you are not thinking about right things, left or right. I need to be on present. Mark your present there and then move out of your house. ठीक है, because we all are, and the moment you will start doing it, you will be more mindful next time. Second thing, very important, अगर कर सकते हो बच्चों, breathing is the most powerful technique. मैं स्पोर्ट्स वालों को भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, ब्रीदिंग हैज सुपर पावर वंशिका। जैसे ही आपको डर लगता है, सबसे पहले क्या होता है? सांसें छोटी हो जाती हैं। अग्रीड? अग्रीड? जैसे ही गोवा पहुंचोगे, वादियों में पहुंचोगे,
वाह, सांसें लंबी हो जाती हैं. दैट इज द पावर ऑफ ब्रीदिंग. सांसों को लंबा करो वंशिका. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज हाउ यू वुड बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ ऑल योर फिजिकल सिम्टम्स, एंजाइटी के, मसल्स टेंशन, शॉर्ट ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, एवरीथिंग. बट आपको क्या लगता है कि जब एंजाइटी हुई है तभी 5 मिनट प्राणायाम करके ऐसे असर तो नहीं होगा? You need to practice for years, वंशिका. मैथ्स को सीखने में जब इतने साल लगे, माइंड को भी सेंटर में लाने में बहुत साल लगेंगे. मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा फोकस ऑन योर ब्रेथ. मैम ध्यान इधर उधर चला जाता है. बेटा तभी तो कह रही हूँ फोकस ऑन योर ब्रेथ. ध्यान एक जगह रह रहा होता तो मैं क्यों फोकस कराती तुम्हें? आर यू गेटिंग मी? दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस मोर नीड. ठीक है. सो इफ यू आर एबल टू ट्रेन योर माइंड बच्चों, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इन योर लाइफ. वंशिका, क्लियर? सो दैट इज व्हाट. हमारे टाइम में एनवायरनमेंट ने हमें इतना इधर उधर भागने की नहीं परमिशन दी. अब तुम्हारे टाइम में एनवायरनमेंट तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, तो भाई तुम तो पावरफुल हो. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे तगड़ी है. सो आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू. सो वर्क ऑन इट. स्टार्ट वर्किंग नाउ. फाइन. चलिए. Vivan, do you have a question? Yeah, I thought I could ask her a question if that's Yeah, okay. yeah, Okay, go ahead. Fine. Oh, Yeah. yeah. Ma'am, I have a question regarding three things. It's like it's clubbed together. My dad was also in the army, so he always stressed upon time management. He said that you have to be punctual about everything and you have to plan everything. So I made a schedule for myself, like a nice elaborate schedule that I'm supposed to be following from 6:30 in the morning to 11:30 in the evening. But this schedule is impacted by mood changes, ma'am. There is certain amount of mood change every day. There's something that will happen and you'll feel good about yourself, so you'll want to do everything in that time schedule. Sometimes you just don't want to do anything in the time schedule, and because of this mood change, procrastination happens, ma'am. And when procrastination happens, it keeps happening again and again, and now I find myself not adhering to the time schedule at all. So if you have any way to tackle that, could you Very please tell me? beautiful question. अब सबसे पहली चीज बच्चों, please try to understand we all are human beings. We are not machines. Got it? ठीक है. ह्यूमन इमोशंस विल कीप कमिंग, विल कीप गोइंग. इज दैट क्लियर? नाउ फौज के अंदर क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन. मोटिवेशन हम हर रोज नहीं रहती. विवान, आर यू गेटिंग मी? दैट इज व्हाई रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फौज के अंदर क्या है? रूटीन्स. डिसिप्लिन मतलब क्या? रूटीन. सुबह 5 बजे परेड है, 5:30 बजे, 6 बजे ये है, 7 बजे ये है, 8 बजे ये है. एवरीथिंग हैज, एंड वी डोंट हैव टाइम टू से नो टू इट. विवान, it is going to be there. Your mood are going to be changed. The first thing you need to understand when you are, एक दोनों साइड बताऊंगी विवान, ठीक है? When it comes to achieving your goals, जब लॉन्ग टर्म चीजों की हम बात करते हैं हमेशा विवान, ठीक है ना, it's never going to happen overnight. First thing, all good things are going to take time. ठीक है? Whenever you make a timetable, sometimes it is going to be 90%. Some days it is going to be 20%. Some days it is going to be only 40%. Sometimes it is going to be 50%. विवान, जब दिल बिल्कुल खराब हो रहा है, जिस दिन 20% है, उस दिन ये मत सोचा किया कर कि 80% नहीं किया. उस दिन ये सोचा किया कर, अगर मेरे पास टाइम टेबल नहीं होता तो मैं ये 20 भी नहीं करता शायद. Got it? It is where your focus goes. You get the energy from that. It is not what you have not done. Just focus on, Vivan, what you have done. Is that clear to everyone? Now, while focusing on that, keep following your routines. It is very, very important. बच्चों, कोई भी अगर routine है, because our brain loves pattern, Vivan. Is that clear? Because sometimes you don't feel like doing also, but if it is there in your routine, तुम थोड़ा बहुत करोगे जरूर. Is that clear? अधमरे मन से. तो जब अभी मैं अपना ये कौन था आजकल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, माइकल फेल्प्स, जो ये अपना स्विमिंग का 8 गोल्ड मेडलिस्ट था ना, तो ही वाज टेलिंग कि मतलब continuously for 5 years he was just going without Saturday, without Sunday, without everything. It does not mean all days he was doing his 100% of energy. No, he was just doing it. Energy wasn't 100%, still okay. Are you getting me? Not doing से कुछ करना बहुत अच्छा है. Is that very important? Most of the time you don't feel like doing it, but still do it. Do it because it is there in your routine. कम करो, ज्यादा करो, it's still okay. Okay? करना जरूरी है. और जब बहुत ज्यादा लगता है, and Vivan, when it's a long term game, we need occasional breaks also. Don't push your self so hard that a stage comes of burnout.
ठीक है, ओकेजनल ब्रेक्स की जरूरत है, छोटा छोटा अचीव करके शाबाशी की जरूरत है अपने आप को देने की। विमान, तुम्हारी जिंदगी है यार, यस यू डिड इट विमान, कल और चलेंगे, ठीक है। और लंबा टाइम है बच्चों, ये मत फोकस करो किसी दिन 1%, 1% 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, ऐसे ही करते करते। और एक ही साथ 100% चेंज करने की कोशिश मत करो, दिन का एक चीज ही सोचो। 1% डे, 1 थिंग, नेक्स्ट डे 2, थर्ड 3, स्टेप बाय स्टेप चलो। आप लोगों को एक दिन में तो सब कुछ बदल देना है और फिर वो कम 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 होता रहता है। एक एक चीज बढ़ाते बढ़ाते चलोगे तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। विवान, आर यू गेटिंग मी? सो व्हेन यू मेक योर टाइम टेबल, ऑल्सो मेक इट अ ब्रीदेबल टाइम टेबल सो दैट इट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। और पोमोडोर टेक्निक फोकस किया करो, इट्स कई बार हेल्प करती है। 25 मिनट्स अच्छे से पढ़ो, गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स ब्रेक, देन 25 मिनट, देन 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, इट वर्क्स। और 5 का 25 मिनट ब्रेक मत कर देना। Yes, Thank Shyam, you, ma'am. quickly, Thank you. quickly. तो Shyam, रूटीन fast. I think we are या late on time. Shyam, yeah, go ahead. डन डन। कृष्ण ने कहा गुड बाय, ठीक है। इफ Excuse me, ma'am. Good evening, ma'am. श्रेयांक, श्रेयांक, Yes, ma'am. Ma'am, first of all, the session was beyond my expectations. Really, ma'am, you are the one of the best women I have ever listened to or met. And thank you, Krishna, for organizing this also. Ma'am, my question was, like you said, discipline, routines, and patterns are very important and crucial for maintaining the thing in the long run. But ma'am, what I think is this means that your cause is not strong enough that it fuels you, it motivates you to do the work in the long run. मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम डिसिप्लिन पर रिलाई कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा कॉज इतना जरूरी नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा तुम्हें, या इतना पावरफुल नहीं है वो तुम्हें सस्टेन कर सके। श्रेयांक, हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चों। देखो, वाई स्ट्रांग होता है तभी आप जाके डिसिप्लिन हो पाते हो। देयर इज नो, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड थिंग्स, दीज आर नॉट द अपोजिट ऑफ एनीथिंग। श्रेयांक, व्हाट आई विल से, आर यू गेटिंग मी मेरा बच्चा? वाई नीड्स टू बी क्लियर, देन ओनली यू आर गोइंग टू मेक योर रूटीन। अगर वाई नहीं है तो तुम उस चीज का रूटीन कभी बनाओगे ही नहीं। Are you getting me? For example, if you ask me if I wanted to become a Fauji, so my routine has to be getting up early in the morning, working on my physical strength and reading the newspaper, then going to my college, working in all extracurricular activities. I had to do it. Are you getting me? हाँ, but we all are humans यार। हम रिश्तों से घिरे हैं, हम हर चीज से घिरे हैं। Every day is not going to be the best day of our life. Are you getting me? Sometimes, for example, mood swings आते हैं, and these are very natural things which happens. उस टाइम में how much you are able to push, उस पुश में रूटीन हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे ब्रश करना है। अब छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके लिए ब्रश करना इज अ टास्क। अग्रीड और नॉट, है ना? ब्रश करना इज अ टास्क ओनली ना। Yes, ma'am. कई बार बच्चे क्या करेंगे, गिला करके रख देते थे ब्रश ना, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ टास्क। बट जब आप उसको डेली कर रहे हो, अब सुबह उठ के टास्क नहीं लगता है। तो श्रेयांक, व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर रूटीन, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ टास्क फॉर यू, इट इज गोइंग टू बिकम योर ओन हैबिट। और जब वो मिसिंग होगी तुम्हें तकलीफ होगी। Is that clear to you? So इसीलिए डिसिप्लिन, रूटीन, ये उन्हीं टाइम में मदद करता है आपका जब मोटिवेशन नीचे जा रही होती है। उस टाइम आपको इससे थोड़ी पुश मिल जाती है, ठीक है। रीजन तो स्ट्रांग होना पड़ता है यार। रीजन, जो वाई का रीजन है, वो मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज जब वाई क्लियर होता है तो तुम अपने आप को बता सकते हो, नहीं सुना है ना, उठ ले बेटा, यूनिफॉर्म पहननी है। जब यूनिफॉर्म पहननी है, अब सिविल सर्वेंट बनना है, या जो भी काम करना है, जो भी तुम्हारी लाइफ का ड्रीम है, तो वो सामने लगा लो। कॉन्टिन्यूअस रिमाइंडर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लैपटॉप खोलो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, वही रिमाइंडर्स आने चाहिए जिंदगी के अंदर, विजुअल रिमाइंडर्स। दिस इज व्हाट वाई वाई वाई, ठीक है। वाई तो क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए, Okay, so we are done with most of the doubts, I think. Before we end the session formally, I would only take a minute, ma'am. सबसे पहले तो आपने बोला ना कि आपको टीनेज में, बचपन में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो सबसे पहले तो आप बहुत 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 खूबसूरत हो। बाहर से तो हो ही, आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। चलो, he made my day Genuinely, now, ठीक है। ठीक है। Yeah, and I have this like now we, I keep getting compliments from my husband, so need not yes, worry. ma'am. And we have received many comments like messages that the session was wonderful, and just now I received a comment कि लग रहा है कि जीवन के बहुत सारे doubts ही solve हो गए, ठीक है। That's so sweet. और the third point कि I would like to thanks Vivan and Jhalak for hosting the session so well,
And the last thing कि we'll put up a message in our Pulsar family group and I would like to request like अभी भी यहाँ 25 लोग हैं तो अगर इसमें से 20 लोग भी अपना फीडबैक दे देंगे ग्रुप पे तो it will really good on our side कि हमें अच्छा लगेगा हमारे efforts को आपने रिकॉग्नाइज किया मैम को भी अच्छा लगेगा एंड डू फॉलो मैम उनका पेज है कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह गो एंड फॉलो हर आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल और आप लोग जाओगे उनको देखोगे और उनके बहुत सारी वीडियोज है द बेटर इंडिया के साथ एक आई थिंक ऑफिशियल पीपल ऑफ इंडिया या फिर बॉम्बे करके बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी उनके पेज पे एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन विद फोल्डेड हैंड्स आने के लिए Thank you ma'am. so much. Bye bye. Take care. Keep the josh always high. Keep smiling. And life is what we make it. Always remember. ठीक है? चलिए. थैंक Thank यू you, मैम ma'am. बाय बाय मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच Bye bye. Thank you so much, ma'am.